Loves me, He died to save me. He lives in glory, my Lord and King. My Savior loves me, He died to save me. He lives in glory, my Lord and King. To reigns with me eternally. Someday you'll come to take me home, to reigns with Him eternally. My Savior loves me, He died to save me. He lives in glory, my Lord and King. My Savior loves me, He died to save me. He lives in glory, my Lord and King. Someday you'll come to take me home, to reign with Him eternally. Someday you'll come to take me home, to reign with Him eternally. Thank you, Grace and Faith Choir. Dhanyabad Grace and Faith Choir. The sermon is the most vital part of a service. Sermon bahut dorkari part hoy servicer. So remember, people, that sermon rules the entire church. Sermon rule kore gutei church. So we would like to call upon Reverend Udairaj Chabilal Poundal. Etia ami Reverend Udairaj Poundal matisu. For the sermon. Sermon karone. नमस्ते ब्रदर सिस्टर। भाई भौनिक नमस्कार। आइए आज हम निर्गमन उसका 12 अध्याय बाइबल खोलेंगे। बोलोग आमी আজি যাত্রা পুস্তকৰ 12 অধ্যায় মেলো। निर्गमन पुस्तक उसका 12 एक्सोडस चैप्टर 12। যাত্রা পুস্তকৰ 12 অধ্যায়। क्या आप सबको मिला? সকলোৱে পালেনে? निर्गमन उसका 12 अध्याय हम लोग एक वचन से पढ़ेंगे। যাত্রা পুস্তকৰ 12 অধ্যায় এক পদৰ পৰা আমি পঢ়িম। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, जिहुआए मूसिक एक কথা কৈছিল, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। এই মাহ তোমালোকলৈ সকলো মাহৰ আদি, এই বছৰৰ সকলো
মাহৰ মাজত তোমালোকৰ প্ৰথম মাহ হ'ব। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। তোমালোকে ইজৰাইলৰ গোটেই মণ্ডলীক কোৱা, এই মাহৰ 10ম দিনা তেওঁবিলাকে নিজ নিজ পিতৃ বংশ অনুসাৰে প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ নিমিত্তে এটা এটা ভেড়া পোৱালি ল'ব। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। আৰু সেই পোৱালি ভোজন কৰিবলৈ যদি কোনো পৰিয়ালৰ তাকৰ হয়, তেন্তে তেওঁ আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰাণীৰ সংখ্যা বুজি এটা ভেড়া পোৱালি ল'ব। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। তোমালোকৰ সেই পোৱালি এবছৰীয়া আৰু নিঘুনি মতা পোৱালি হ'ব লাগিব। তোমালোকে তাৰ ভেড়া বা ছাগবোৰৰ পৰা ল'বা। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। আৰু তোমালোক তাক এই মাহৰ 14 দিনৰ দিনলৈ ৰাখিবা। পাছে ইজৰাইলৰ মণ্ডলীৰ গোটেই সমাজে সন্ধিয়া পৰত তাক মাৰিব। तब वो उसे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाएं। পাছে তেওঁবিলাকে তাৰ কিছু তেজ লৈ যি যি ঘৰত তাক ভোজন কৰিব, সেই ঘৰৰ দুৱাৰৰ চুকাঠৰ 2 দাঁতিৰ দুডালত আৰু ওপৰৰ ডালতো লগাব। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। আৰু সেই ৰাতিয়ে তেওঁলোকে তাক খৰিকাত দি খমিৰ নিদিয়া পিঠাৰে তাৰ মঙহ খাব। তেওঁবিলাকে তাৰ তিতা শাকেৰেও ভোজন কৰিব। उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। তোমালোকে তাক কেঁচাই নাইবা পানীত সিজাইও নেখাবা, কিন্তু তাৰ মূৰ ঠেং আৰু অন্তৰত থকা ভাগে সৈতে তাক খৰিকাত দিহে খাবা। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। আৰু ৰাতিপুৱালৈ তাৰ এফেৰিও অৱশিষ্ট নেৰাখিবা, কিন্তু ৰাতিপুৱালৈ যি অৱশিষ্ট থাকে তাক তোমালোকে জুইত পুৰি ভস্ম কৰিবা। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। আৰু তোমালোকে তাক এইদৰে খাবা, কাপোৰ চপাই কঁকাল বান্ধি ভৰিত জোতা পিন্ধি আৰু হাতত লাখুটি লৈ বেগা বেগিকৈ ভোজন কৰিবা। সেই জিহুৱাৰ নিষ্ঠাৰ পৰ্ব বলি হ'ব। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहले उठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। কিয়নো মই সেই ৰাতিয়ে মিছৰ দেশৰ মাজেদি গৈ মানুহৰ বা পশুৰে হওক মিছৰ দেশৰ সকলো প্ৰথমে জন্মাবোৰক সংহাৰ কৰিম, আৰু মিছৰীয়া সকলো দেৱতাবোৰক দণ্ড দিম। ময়ে জিহুৱা। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। আৰু তোমালোকে যি যি ঘৰত থাকা সেই ঘৰত সেই তেজেই তোমালোকৰ অৰ্থে চিন হ'ব। তাতে মই সেই তেজ দেখি তোমালোকক এৰি থৈ যাম, আৰু মই মিছৰ দেশত সংহাৰ কৰোঁতা তোমালোকক বিনষ্ট কৰিবলৈ কোনো অপথে তোমালোকক নেপাব। और वह दिन तुम लोग को स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मना जाए। আৰু সেই দিন তোমালোকলৈ সোঁৱৰণীয় হ'ব, আৰু তোমালোকে সেই দিন জিহুৱাৰ উৎসৱৰ দিন বুলি পালন কৰিবা। পুৰুষানুক্ৰমে চিৰস্থায়ী বিধিমতে তাক পালন কৰিবা। ये कॉयर के सब बच्चों को इधर आगे आके बैठने बोलो। जब हम निर्गमन के 12 अध्याय को देखते हैं, যেতিয়া আমি যাত্ৰা পুস্তকৰ 12 অধ্যায় চাওঁ, यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों को बचने का रास्ता बताता है। ইয়াতে ঈশ্বৰে ইজৰাইলীসকলক বাচাৰ ৰাস্তাটো দেখুৱায়।
तो बचने का रास्ता जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिखाया है वो रास्ता इजरायली लोगों ने साफ रीति से जानना जरूरी है। আৰু যি বাছাৰ ৰাস্তাটো ঈশ্বৰে ইজৰাইলীসকলক দেখাইছে সেইটো ইজৰাইলীসকলে ভালদৰে জনাৰ দৰকাৰ। अगर वो लोग उस रास्ते को नहीं जानेंगे तो তেওঁলোকে যদি সেই ৰাস্তাটো নাজানে वो लोग इजरायली हैं इसके लिए वो बच जाएंगे ऐसा नहीं है। তেওঁলোকে যে ইজৰাইলী কাৰণে বাছি যাব তেনে নহয়। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग इस संसार में जो क्रिश्चियन है वो लोग सोचते हैं हम क्रिश्चियन हैं इसके लिए बच जाएंगे। আৰু এই সংসাৰত বহুত মানুহ খ্ৰীষ্টীয় হয় বুলি বাছি যাব বুলি ভাবে, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। কিন্তু বাইবেলটো তেনেকুৱা নহয়। बाइबल में परमेश्वर ने लोगों के मन की अगुवाई को बहुत साफ रीति से लिखा है। বাইবেলত ঈশ্বৰে মানুহৰ মনৰ গাইডেন্সটো বহুত স্পষ্ট ৰূপে तो লিখিছে। जब तक वो अगुवाई इंसान के मन में नहीं आता যেতিয়ালৈকে সেই গাইডেন্সটো মানুহৰ মনত নাহে इंसान हमेशा एक उलझन से भरा हुआ जीवन जीता है। মানুহে সদায় এটা কনফিউজনেৰে ভৰা জীৱন জীয়ায়। वो कभी भी एक स्पष्ट जिंदगी नहीं जी सकता। তেওঁ কেতিয়াও এটা স্পষ্ট জীৱন জীয়াব ना तो वो নোৱাৰে। इंसान के मन में अपने उद्धार का स्पष्टता आता है। সেই মানুহজনৰ হৃদয়ত উদ্ধাৰৰ স্পষ্টতা নাহে। अभी ये संसार में कौन है जो नहीं जानता कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे? এই পৃথিৱীত কোনে নাজানে যে যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ পাপৰ কাৰণে মৰিছে বুলি। सभी लोग जानते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन लोग तो साफ रीति से जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मानव जात के पाप के लिए मरे। সকলো মানুহে জানে, বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টীয়সকলেতো জানে যে যীশুৱে আমাৰ পাপৰ কাৰণে মৰিছে। इसका मतलब ये नहीं कि उनका मन पाप से स्वतंत्र है। তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ মনটো পাপেৰে স্বতন্ত্ৰ। लोग जानते हैं कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग नाश नहीं होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। মানুহে জানে যে যীশুত বিশ্বাস কৰা মানুহে ধ্বংস নহব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। लेकिन कितने लोग हैं जो गवाही दे सकें कि मैं कैसे यीशु पे विश्वास करता हूँ और अब मेरे पास अनंत जीवन है? ऐसे बातों की गवाही देने वाले लोग कितने होंगे? কিন্তু কিমান মানুহে এইটো সাক্ষ্য দিব পাৰে যে মই যীশুৰ উদ্ধাৰ পাইছো, অনন্ত জীৱন পাইছো বুলি। वो लोग बोल नहीं सकते मेरे पास अनंत जीवन है, তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ লগত অনন্ত জীৱন আছে বুলি। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं हम यीशु पे विश्वास करते हैं, ऐसा बोलते हैं। কিন্তু যীশুত বিশ্বাস কৰো বুলি কয়। तो यीशु पे विश्वास करते हैं ऐसा बोलते भी हैं, मेरे पास अनंत जीवन है ये बोल भी नहीं सकते। যীশুত বিশ্বাস কৰো বুলি কয় কিন্তু মোৰ লগত অনন্ত জীৱন আছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। तो दोनों चीज मिला हुआ होना चाहिए। দুটা বস্তুৱে মিলা হ'ব লাগে। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो যদি আমি যীশুক বিশ্বাস কৰো हमारे पास अनंत जीवन होना चाहिए। তেনেহলে আমাৰ লগত অনন্ত জীৱন থাকিব লাগে। लेकिन जो इंसान बोलता है मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ लेकिन अनंत जीवन मेरे पास है, ये नहीं बोल सकता। কিন্তু যোনে কয় যে মই যীশুত বিশ্বাস কৰো কিন্তু অনন্ত জীৱন আছে বুলি ক'ব নোৱাৰে, इसका मतलब ये यीशु पे विश्वास का मामला नहीं जानता। তাৰ মানে তেওঁ যীশুত বিশ্বাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাজানে। तो वो इंसान ने अपना मन खोलना चाहिए, विश्वास क्या है ये सीखने के लिए। সেই মানুহজনে বিশ্বাস কি হয় এইটো শিকিবলৈ নিজৰ মন খোলাৰ দৰকাৰ। तो जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु पे विश्वास करने का समय आया মই প্ৰথমবাৰ প্ৰভু যীশুক বিশ্বাস কৰাৰ সময় আহোতে तो मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं ऐसे सोचता था। মই ভাবিছিলো যে মই যীশুক বিশ্বাস কৰো, क्योंकि यूहन्ना 3:16 के द्वारा मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन आया। কাৰণ যোহনৰ 3:16 পদৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ বাক্য মোৰ তাতে আহিছে परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, যে ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে। और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। আৰু যোনে সেই পুত্ৰক বিশ্বাস কৰিব তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। तो जब मैं चर्च में जाने लगा মই যেতিয়া গীৰ্জাত যাবলৈ ধৰিলো, मैंने बपतिस्मा भी लिया, বাপ্তিস্মও ললো, मैं चर्च में भी जाता था, গীৰ্জাতো গৈছিলো, प्रार्थना भी करता हूँ, প্ৰাৰ্থনাও কৰো, दान भी दे रहा था, दशांश भी दे रहा था। দান দশম ভাগ দি আছিলো। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था কিন্তু যেতিয়া মই বাইবেলটো পঢ়ো मेरा मन बहुत ही अस्पष्ट होता था। মোৰ মন বহুত অস্পষ্ট হৈছিলে। स्पेशली बाइबल के कुछ ऐसे भाग थे जिनको पढ़ के मैं बहुत अस्पष्ट होता था। বিশেষকৈ বাইবেলৰ কিছুমান ভাগ পঢ়ি মই বহুত অস্পষ্ট হৈছিলো। जैसे कि यूहन्ना का 3 अध्याय, যেনেকৈ যোহনৰ 3 অধ্যায় उसमें लिखा है जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होएगा तुम स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते। লিখা আছে যেতিয়ালৈ তোমাৰ নতুন ৰূপে জন্ম নহয় তুমি স্বৰ্গ চাব নোৱাৰা। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि मेरा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, মই বুজাব নোৱাৰিছিলো যে মোৰ নতুন জন্ম হৈছে নে নাই, क्योंकि मैं खुद नया जन्म नहीं पाया हूँ तो मैं बता नहीं सकता मैंने कैसा नया जन्म पाया। কাৰণ মই নিজে নতুন জন্ম পোৱাই নাই, গতিকে মই ক'বই নোৱাৰো যে মই কেনেকে পাম। और वचन में लिखा है आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, पानी से जन्म लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? তাৰপিছত মোক কৈছে আত্মাৰে জন্ম হ'ব লাগিব, পানীৰে জন্ম হ'ব লাগিব, তাৰ মানে কি? तो मैं बोल नहीं सकता कि मेरा आत्मा से जन्म हुआ है बोल के, মই ক'ব নোৱাৰো যে মোৰ আত্মাৰে জন্ম হৈছে বুলি, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मेरा पानी से जन्म हुआ है बोल के। মই ক'ব নোৱাৰো যে মোৰ পানীৰে জন্ম হৈছে तो বুলি। ये पानी से जन्म
होना मतलब क्या है? পানীৰে জন্ম হোৱা মানে কি? तो जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मैं लोगों से पूछता भी था, মই বাইবেল পঢ়োতে মই মানুহক সুধিছিলো तो मैं उनसे पूछता था पानी से जन्म लेना मतलब क्या होता মই है? সুধিছিলো পানীৰে জন্ম লোৱা মানে কি হয়? आत्मा से जन्म लेना मतलब क्या होता है? আত্মাৰে জন্ম লোৱা মানে কি? तो ऐसे सवाल कब आ सकते हैं आपके पास? এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনাৰ ওচৰত কেতিয়া আহিব পাৰে? अगर आप बाइबल को खोलोगे तो, যদি আপুনি বাইবেলটো মেলে, अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो, যদি আপুনি বাইবেল পঢ়ে, अगर बाइबल बंद करके क्रिश्चियन बनोगे तो বাইবেল বন্ধ কৰি যদি খ্ৰীষ্টীয় বনো, आप खाली बोलोगे मैं तो यीशु पे विश्वास करता हूँ, কেৱল এইটো কোৱা যাব যে মই যীশুক বিশ্বাসহে কৰো, हाँ मैं चर्च को जाता हूँ, মই গীৰ্জাত যাওঁ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, মোৰ বাপ্তিস্ম হৈছে, आप ऐसी बातें कर सकते हो। এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে। लेकिन जब आप बाइबल खोलोगे, কিন্তু যেতিয়া বাইবেলটো মেলিব, जब तक तुम्हारा नए सिरे से जन्म नहीं होगा तुम स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते हो। নতুন ৰূপে জন্ম লহলে তোমাৰ স্বৰ্গৰাজ্য চাব নোৱাৰা, आपका मन हिलना शुरू हो जाएगा। মনটো হিলিব আৰম্ভ হ'ব। सच में मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है क्या? সঁচাকৈ মোৰ নতুন ৰূপে জন্ম হৈছে तो নেকি? नया जन्म मतलब क्या है? নতুন জন্ম মানে কি? तो आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? আত্মাৰে জন্ম লোৱা মানে কি হয়? पानी से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? পানীৰে জন্ম লোৱা মানে কি হয়? तो मैं लोगों से पूछता था पानी से जन्म लेना मतलब क्या है? মই মানুহক সুধিছিলো পানীৰে জন্ম লোৱা মানে কি? तो लोग कहते थे तुम्हारा पानी का बपतिस्मा हुआ है क्या? মানুহে সুধে তোমাৰ পানীৰ বাপ্তিস্ম হৈছে নেকি? लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, কিন্তু যেতিয়া মই বাইবেলটো পঢ়ো, बाइबल में लिखा है कि पानी का बपतिस्मा किसी का पाप धोता है, ऐसा नहीं है। বাইবেল লিখিছে যে পানীৰ বাপ্তিস্ম কাৰো পাপ নোধুৱে। हाँ बाइबल में पानी का बपतिस्मा है, হয়, বাইবেলত পানীৰ বাপ্তিস্ম আছে, लेकिन बपतिस्मा इंसान का पाप धोता है ऐसा नहीं है। কিন্তু বাপ্তিস্মই মানুহৰ পাপ নোধুৱে। इसका मतलब बपतिस्मा जिसने पाया है उसके पाप धुल गए हैं ऐसा नहीं है। বাপ্তিস্ম যোনে পাইছে তাৰ পাপ ধুইছে সেনেকা নহয়। बपतिस्मा का और पाप धोने का कोई भी मतलब नहीं है। বাপ্তিস্ম আৰু পাপ ধোৱাৰ একো অৰ্থ নাই। तो फिर मैं आत्मा से जन्म लेने के बारे में मैं पूछता था। মই আত্মাৰে জন্ম লোৱাৰ বিষয়ে तो সুধিছিলো। आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? আত্মাৰে জন্ম লোৱা মানে কি तो হয়? लोग हमको बोलते थे बोलो प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, ऐसे बोलने को लगाते थे। আৰু মানুহে আমাক কৈছিলে যে এনেকে কোৱা প্ৰভু আমাক পবিত্ৰ আত্মা দিয়ক, পবিত্ৰ আত্মা দিয়ক। तो हम लोग रात भर वही प्रार्थना करते थे, আমি গোটেই ৰাতি সেয়াই প্ৰাৰ্থনা हाँ কৰিছিলো प्रभु पवित्र आत्मा दीजिए, যে প্ৰভু আমাক পবিত্ৰ আত্মা हाँ দিয়ক, प्रभु पवित्र आत्मा दीजिए। আমাক পবিত্ৰ আত্মা দিয়ক। क्योंकि आत्मा नहीं पाएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। কাৰণ আত্মা নাপালে আমি স্বৰ্গত যাব নোৱাৰো। तो ऐसे कई सवाल मेरे मन में रह जाते थे এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন মোৰ মনত আহিছিলে और कोई वो सवाल को सुलझाने वाला नहीं था। আৰু সেই প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ কোনো নাই। और जब मैं बाइबल पढ़ता আৰু যেতিয়া মই বাইবেল পঢ়ো, तो बाइबल में ऐसे ये कैसे एक इंसान के पाप धुलते हैं वो भी लिखा हुआ है। এজন মানুহৰ পাপ কেনেকে ধোৱা হয় সেইটো লিখা আছে। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, যেতিয়া মই বাইবেলটো পঢ়ো, पाप के लिए बलि किया जाता है, পাপৰ কাৰণে বলি দিয়া হয়। लेकिन बाइबल में कहीं भी प्रार्थना के द्वारा पाप धोए नहीं गए हैं। কিন্তু বাইবেলত কতো প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি পাপ ধোৱা হোৱা নাই। किसी इंसान ने कह दिया है ईश्वर मेरे पाप क्षमा कर, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। আৰু কোনোবা মানুহে কৈছে ঈশ্বৰ পাপ ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু ক্ষমা হৈছে তেনে নহয়। तो बाइबल में पाप क्षमा भी एक प्रेसाइसली प्रोसेस है। বাইবেলত পাপ ক্ষমাৰো এটা সঠিক প্ৰক্ৰিয়া আছে। तो बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि एक पापी के पास अनंत जीवन नहीं है। বাইবেলত এইটো লিখিছে যে এজন পাপীৰ লগত অনন্ত জীৱন तो নাই। मैं बहुत मुश्किल में गिर जाता था। মই বহুত দিগদাৰিত পৰি গৈছিলো। तो मैं एक तरफ कहता हूँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, এফালে মই কওঁ যে মই যীশুক বিশ্বাস কৰো, तो मेरे पास अनंत जीवन रहना चाहिए। মোৰ লগত অনন্ত জীৱন থাকিব লাগে। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि मुझ में पाप है, আনফালে মই কওঁ যে মোৰ লগত পাপ আছে, तो पापी के पास तो स्वर्ग नहीं है। পাপীৰ লগতো স্বৰ্গ নাই। तो ये पाप कैसे मिटाए जाएंगे? এই পাপটো কেনেকে গুচোৱা হ'ব? तो मैं जाता था बूढ़े बूढ़े पास्टर लोगों से मिलता था। মই বৃদ্ধ পাষ্টৰক লগ কৰিছিলো। पास्टर जी পাষ্টৰ बाहर से बहुत गोरा हूँ বাহিৰেদি বহুত বগা, लेकिन अंदर बहुत काला है, ভিতৰত বহুত কলা আছে। ये अंदर का काला कैसे साफ होता है? এই ভিতৰৰ কলাখিনি মই কেনেকে চাফা কৰো? तो हमेशा मुझे यही उत्तर मिलता, उपवास करो और प्रार्थना करो। সদায় মই এইটোৱে উত্তৰ পাওঁ যে উপবাস কৰা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰা। तो मेरा मन पाप से भरा हुआ है মোৰ মনটো পাপেৰে ভৰ্তি হৈ और আছে मैं पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, कैसे मुझे आत्मा मिलेगा? আৰু মই পবিত্ৰ আত্মা পাবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো যে মই কেনেকৈ পাম। तो फिर कभी कभी मैं ऐसे सोचता, जब मैं मत्ती के पुस्तक को पढ़ता, কেতিয়াবা যেতিয়া মই মথিৰ পুস্তকটো পঢ়ো उसमें ऐसे लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। যে আমন্ত্ৰিত লোক বহুত কিন্তু চুজেন মানুহ বহুত কম।
सही है ना? হয়নে? मत्ती के पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है। মথিৰ পুস্তকত লিখিছে तो এইটো। मुझे ऐसा लगता हाँ शायद मैं बुलाया हुआ हूँ लेकिन चुना हुआ नहीं हूँ। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলো মোক চাগে মাতিছে কিন্তু মই মনোনীত নহয় हाँ চাগে। मेरे लिए स्वर्ग नहीं है। মোৰ কাৰণে স্বৰ্গ নাই। तो लिटरली मेरा मन हमेशा नरक के बारे में डरते रहता था সদায় মোৰ মনটো নৰকৰ বিষয়ে ভয়ত আছিলে। और विश्वास के मामले में बहुत सवाल मेरे मन में पैदा होते थे আৰু বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰশ্ন মোৰ মনত আহিছিলে। क्योंकि हमारे मन की एक अगुवाई होती है। কাৰণ আমাৰ মনৰ এটা গাইডেন্স থাকে। अगर वो अगुवाई ठीक रीति से अगर नहीं होता है तो সেই গাইডেন্সটো যদি ঠিক ৰূপে নহয় हमारे मन का उलझन कभी भी नहीं सुलझता। আমাৰ মনৰ কনফিউজনটো কেতিয়াও ঠিক নহয়। तो जब हमारे शरीर में कोई बीमारी भी होता है আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া কিবা বেমাৰো হয় वो बीमारी के बारे में भी हम ठीक रीति से नहीं जानते। সেই বেমাৰৰ বিষয়ে আমি ঠিক ৰূপে নাজানো। हाँ हमें महसूस होता है कि हमें कोई तो समस्या है আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আমাৰ কিবা এটা সমস্যা लेकिन আছে एग्जैक्ट क्या समस्या है हमको समझ में नहीं आता। কিন্তু সঠিক কি সমস্যা আমি এইটো বুজি নাপাওঁ। इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं সেইবাবে আমি ডাক্তৰৰ ওচৰত और যাওঁ। डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है। ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ কওঁ যে আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা হৈছে। तो डॉक्टर हमारी समस्या का पहले डिस्कवर करता है ডাক্তৰে আমাৰ সমস্যাটো প্ৰথমতে और ডিছকভাৰ কৰে हमें हमारी समस्या की जानकारी देता है। আৰু আমাৰ সমস্যাটো জানিবলৈ দিয়ে। तुम्हारी बीमारी का नाम ये है, আমাৰ বেমাৰৰ নাম ইটো হয়, तुम्हें ऐसा ऐसा बीमारी है। আমাৰ ইটো সিটো বেমাৰ আছে। तो जब डॉक्टर हमें हमारी बीमारी का ज्ञान देता है যেতিয়া ডক্তৰে আমাৰ বেমাৰৰ জ্ঞান দিয়ে तभी हमारा मन गंभीर होता है। তেতিয়াহে আমাৰ মনটো গম্ভীৰ হয়। अगर बीमारी का ज्ञान हमको नहीं मिलेगा तो বেমাৰৰ জ্ঞান যদি আমি নাপাওঁ हालांकि हम मौत के दरवाजे पे हैं যদি আমি মৃত্যুৰ দুৱাৰত আছো हमें ज्ञान नहीं है इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। আমি জ্ঞান নাই কাৰণে আমি স্বতন্ত্ৰ হয়। अभी कितने समय से मुझे ब्लड प्रेशर का समस्या था मुझे नहीं मालूम। কিমান সময়ৰ পৰা মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম আছিলে মই নাজানো। मैं कभी भी मर जा सकता था। মই যেতিয়া তেতিয়া মৰি যাব পাৰিলো হয়। तो लेकिन एक दिन मैं जब इस समय आंध्रा में था এবাৰ যেতিয়া মই আন্ড্ৰত আছিলো तो हमारे दूसरे पास्टर हैं उड़ीसा के पास्टर टेड, আমাৰ উৰিষ্যাৰ পাষ্টাৰ টেড আছে तो उनके सामने मैं ऐसे ही बैठा हुआ था তেওঁৰ আগত মই এনে বহি तो আছিলো। उन्होंने मेरे पैर को देखा তেওঁ মোৰ ভৰি চালে तो मेरे पैर में अगर आप नीचे देखोगे तो बहुत सारे काले 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 ऐसे दाग है আৰু ভৰিৰ তলত যদি চাই বহুত কলা কলা এনেকুৱা দাগ আছে। क्योंकि मेरे पैर के बहुत सारे ब्लड वेसल जो होते हैं वो फटे हुए हैं। কাৰণ মোৰ ভৰিৰ বহুত ব্লাড ভেচেলছ ফাটিছে। तो वो ब्लड वेसल क्यों फट जाते हैं ऐसे? কিয় এনেকে ব্লাড ভেচেলছ ফাটি যায়? अगर ब्लड प्रेशर है तो फट जाते हैं। ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিলে ফাটে। मुझे ये सिम्टम्स बहुत लंबे समय से है মোৰ এইটো চিম্পটমছ বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা আছে। तो मुझे लगा शायद सॉक्स की वजह से ऐसा हुआ होगा बोलकर मैंने छोड़ दिया। মই ভাবিছো মোজা পিন্ধাৰ কাৰণে এনেকা হৈছে চাগে এইকাৰণে এৰি দিলো। तो मेरे ब्लड वेसल फटे हुए हैं मुझे मालूम नहीं है। মোৰ ব্লাড ভেচেলছ ফাটি আছে বুলি মই গমেই ब्लड নাপাওঁ। वेसल फटने से ऐसा होता है मुझे मालूम नहीं है ব্লাড ভেচেলছ ফাটিলে যে এনেকুৱা সময় গমেই নাপাওঁ। क्योंकि उसके बारे में मेरे पास ज्ञान नहीं है। কাৰণ সেই বিষয়ত মোৰ জ্ঞান নাই, मुझे बीमारी का ज्ञान नहीं है। মোৰ বেমাৰৰ জ্ঞান নাই। लेकिन वो पास्टर टेड उनको खुद को ब्लड प्रेशर है কিন্তু পাষ্টাৰ টেড তেওঁৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে। इसके लिए वो बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में सब कुछ সেইকাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰ বিষয়ে বহুত ভালদৰে পঢ়ে और वो दवाई भी आराम से सजेस्ट कर सकते আৰু हैं। দাৱাই সহজতে দিব। क्या ক'ব खाना है পাৰে। क्या नहीं खाना है वो भी बहुत अच्छे से सजेस्ट কি करते हैं। খাব লাগে নালাগে চব ভালদৰে ক'ব तो उन्होंने পাৰে। मेरे पैर को देखा, তেওঁ মোৰ ভৰি চালে। ए विजय भाई क्या हुआ है तुझे? বিজয় ভাই তোমাৰ কি হৈছে? तुम्हें लो पास्टर कुछ नहीं वो ऐसा ही है बहुत पहले से है। পাছে একো নাই আগৰ পৰাই আছে। ऐसा ही कुछ नहीं है এনেই হোৱা নাই, मुझे ब्लड प्रेशर है। তোমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে। अरे क्या पास्टर मुझे ब्लड प्रेशर क्यों होएगा? পাছে কেনেকে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব? दुनिया में सबसे ज्यादा शांति से जीने वाला इंसान मैं हूँ, এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ শান্তিত জীয়া মানুহ ময়ে হয়। मुझे ब्लड प्रेशर क्यों होएगा? মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কিয় হ'ব? क्योंकि मेरे अनुसार কাৰণ মোৰ অনুসাৰে ब्लड प्रेशर किसको होता है? ব্লাড প্ৰেছাৰ কাৰ হয়? जिसको बहुत टेंशन रहता है। যাৰ বহুত টেনচন থাকে। तो मेरे पास तो टेंशन लेने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में। মোৰতো এই পৃথিৱীত টেনচন ল'বৰ কাৰণে একোৱেই নাই। तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मुझे टेंशन है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। মোৰ সপোনতে ভাবিব নোৱাৰো যে মোৰতো টেনচন আছে বুলি। मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि सिर्फ टेंशन से ही ब्लड प्रेशर होता है। মইতো ভাবিছিলো অকল টেনচনে দিয়ে ব্লাড প্ৰেছাৰ लेकिन হয়। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन से ही ब्लड प्रेशर होता है, ऐसा भी नहीं है। টেনচন হ'লেই যে ব্লাড প্ৰেছাৰ হয় তেনেকুৱাও নহয়। ये मुझे मालूम नहीं था ना। মই সেইটো গম পোৱা तो जो নাছিলো। पास्टर ने मेरे पैर को देखा, পাষ্টৰে যেতিয়া মোৰ ভৰি চালে ये ब्लड प्रेशर का सिम्टम सही है, এইটো ব্লাড প্ৰেছাৰৰ চিম্পটম হয়, जा और चेक कर। যোৱা আৰু চেক तो কৰা। हालांकि मुझे चेक करना भी नहीं था, सही बोलूं तो, সঁচাকে ক'ব গ'লে মই চেক কৰিব বিচৰা लेकिन নাছিলো। हमारी कलीसिया में हम लोग पास्टर लोगों की आवाज को जीतते नहीं है। কিন্তু আমাৰ গিৰ্জাত পাষ্টৰসকলৰ আৱাজক আমি নিজিকো। अगर पास्टर ने बोला है তো हम वैसा ही करते हैं, পাষ্টৰে যদি কয় আমি তেনেকেই কৰো। क्योंकि हम मानते हैं कि पास्टर परमेश्वर के दास हैं কাৰণ আমি মানো যে পাষ্টৰ ঈশ্বৰ দাস হয় और दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, ऐसा हमारा विश्वास है। আৰু আমাৰ এইটো বিশ্বাস যে দাসৰ যোগেদি ঈশ্বৰ আমাৰ লগত কথা পাতে। अगर परमेश्वर का दास मुझे बोल रहा है जाके चेक कर, तो मैंने करना चाहिए। ঈশ্বৰ দাসে
মায়ে যদি কৈছে গৈ চেক কৰা মই কৰিব লাগে क्योंकि मैं परमेश्वर के सेवक के आगे जीत नहीं सकता, इसके लिए मैं गया और मैंने चेक किया। ঈশ্বৰৰ দাহৰ আগত মই জিকিব নোৱাৰো কাৰণে মই গলো तो जो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था वो परेशान हो गया। যোনে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ চেক কৰি আছে তেওঁ দিগদাৰী পালে वो बोल रहा था ओ हाइपरटेंशन है, ऐसा बोल के बोल रहा था। হাইপাৰ টেনচন আছে তোমাৰ तो मैं हंस रहा था, মোৰ হাঁহি উঠিছিল "हे, ভিতৰত। क्या मेरे को हाइपरटेंशन है, কি মোৰ হাইপাৰ টেনচন আছে दोबारा चेक कर। আৰু এবাৰ চেক तो কৰক मैंने फिर से उसको चेक करने के लिए लगाया। আকৌ এবাৰ চেক কৰিব तेरा দিলে मशीन ठीक है ना? আপোনাৰ মেচিন ঠিকে আছে हाँ, ন उसको भी पता है मैं पास्टर हूँ। जो मेरा ब्लड चेकअप कर रहा है वो भी, उसको भी पता है मैं पास्टर हूँ। যোনে মোৰ ব্লাড চেক কৰিছিলে তেওঁ জানে যে মই এজন পাষ্টৰ और जो হয় डॉक्टर मुझे मेडिसिन देने वाला वो भी जानता है मैं पास्टर हूँ, क्योंकि वो हमारे ये जो कंटाटा का प्रोग्राम में आए हुए लोग थे वो আৰু लोग। ডক্টৰজনো জানে যে মই পাষ্টৰ কাৰণ কণ্টাক্ট প্ৰগ্ৰামত আহিছিলে তাহাঁতে तो इसलिए मैं बस आराम से बोल रहा था, सच में ऐसा है, थोड़ा चेक करो, फिर से चेक करो। সেইকাৰণে মই আৰামত কৈ আছিলো যে আৰু এবাৰ চেক तो हालांकि वो मशीन दिखा रहा था मुझे ब्लड प्रेशर है बोल के 175 170 दिखा रहा था, আৰু সেই মেচিনটোৱে 175 এনেকে দেখাই আছিলে যে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে वो उसको मानने को तैयार नहीं था। মই এইটো মানিবলৈ ৰেডি নাছিলো शायद से मशीन बहुत पुराना है, চাগে মেচিনটো বহুত পুৰণা आई, হয় इसके लिए ये मेरा जो ब्लड प्रेशर दिखा रहा है वो ठीक नहीं दिखा रहा সেইকাৰণে है। ব্লাড প্ৰেছাৰ দেখুৱাই আছে যে এইটো ঠিক तो নহয় मैंने उसे 2-3 बार दिखवाया, 2-3 বাৰ দেখুৱালো तो उसके बाद वो डॉक्टर बहुत हैरान हो गया। তাৰপিছত ডক্টৰটো বহুত আচৰিত तो হ'ল उसने बोला पास्टर बहुत सारे चेकअप करने पड़ेंगे। বহুত চেকআপ কৰিব লাগিব तो पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे वायर इधर 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 किधर किधर सब जगह लगा के उन्होंने घंटा भर मुझे चेकअप किया, मेरे सारे बॉडी को चेकअप किया। আৰু কিবা কিবি সৰু সৰু ৱায়াৰ য'তে ত'তে তেনেকে লগাই পেলাই ঘণ্টা মোৰ কাৰণে মোৰ চেকআপ কৰিলে तो उसने कहा बाकी ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, ক'লে যে বেছি এইটো একো প্ৰব্লেম নাই लेकिन अभी होश में आने की जरूरत है। কিন্তু এতিয়া চেতনত অহাৰ দৰকাৰ अभी मांस खाना बंद करो, মাংস খোৱা বন্ধ কৰক अगर जीना है आगे तो যদি আগলৈ জীয়াব थोड़ा বিচাৰিছে मोटापा कम करो, অলপমান ক্ষীণাওক थोड़ा सा मांस खाना कम करो। মাংস খোৱা तो কমাওক ऐसा बोल के डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करना शुरू किया। এনেকা কৰি ডাক্তৰে মোক ক'ব ধৰিলে तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, মই কি ক'ব বিচাৰো जब तक मैं चेक नहीं कराया मुझे ब्लड प्रेशर था, যেতিয়ালৈ মই চেক কৰোৱা নাছিলো মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছিলে लेकिन मैं जानता नहीं था। কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলো मैं बहुत मौत के नजदीक था, মই মৃত্যুৰ বহুত ওচৰত আছিলো कभी भी मैं मर सकता था, যেতিয়া তেতিয়াই মোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে मुझे पैरालिटिक्स हो सकता था, পেৰালাইটিক্স হ'ব পাৰিলে कुछ হয় भी हो सकता था। যি টি হ'ব পাৰিলে হয় लेकिन किसी ने मुझे कहा तुम्हें ब्लड प्रेशर है ऐसा लग रहा है, किसी परमेश्वर के दास ने कहा, और मुझे कहा तुम जाके चेक करो। আৰু কোনোবা ঈশ্বৰ দাসে ক'লে যে তোমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে চাগে তুমি গৈ চেক কৰা तो जब मैं जाके चेक करता हूँ মই যেতিয়া গৈ চেক কৰো तब असलियत का पता चलता है, তেতিয়া সঁচাটো গম পাওঁ उसके बिना असलियत का पता नहीं चलता। সেইটো নহলে মই সত্যটো গম तो নাপাওঁ जब हमें असलियत का पता चलता है যেতিয়া আমি সঁচাটো গম পাওঁ उसके बाद क्या होता है, তাৰ পাছত কি হয় हम डॉक्टर के प्रति गंभीर हो जाते हैं। আমি ডাক্তৰৰ প্ৰতি গম্ভীৰ হৈ तो যাওঁ हमेशा जब मैं हमारे भाई बहनों को देखता हूँ, সদায় যেতিয়া আমাৰ ভাই ভনীক চাওঁ क्यों आप लोग वचन के प्रति गंभीर नहीं हो, বাক্যৰ প্ৰতি কিয় গম্ভীৰ নহয় क्यों आप चर्च के प्रति गंभीर नहीं हो, গীৰ্জাৰ প্ৰতি কিয় গম্ভীৰ क्यों নহয় परमेश्वर के सेवकों के बात के प्रति गंभीर नहीं हो, ঈশ্বৰৰ দাহৰ আৱাজৰ প্ৰতি কিয় গম্ভীৰ নহয় क्योंकि आपको अपनी बीमारी पता नहीं है। কাৰণ বেমাৰটো গম নাপায় आत्मिक बीमारी ठीक रीति से जब जिनको पता नहीं होता, আত্মিক বেমাৰ ঠিক ৰূপে যোনে গম নাপায় वो लोग ऐसे ही जी लेते हैं, তাতে এনেই জীয়াই और ऐसे जीते जीते एक दिन मरने का दिन आता আৰু है, সেনেকে জীয়াই এদিন মৰাৰ দিন আহে और मरने के दिन में लोग मरना नहीं चाहते हैं, মৰাৰ দিনত মানুহে মৰিব নোখোজে मरने के दिन में लोग डरते हैं। মৰাৰ দিনা মানুহে ভয় কৰে क्यों डरते हैं? কিয় ভয় কৰে क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग में जाने का श्योरेंस नहीं होता। কাৰণ মৃত্যুৰ সময়ত স্বৰ্গত যোৱাৰ নিশ্চিততাটো নাই तो जिनके मन में मरने के दिन में स्वर्ग में जाने का निश्चितता नहीं होता, যাৰ হৃদয়ত মৰাৰ দিনা স্বৰ্গত যোৱাৰ নিশ্চিততাটো वो নাহে लोग मौत से बहुत डरते हैं, তাতে মৃত্যুক বহুত ভয় কৰে क्योंकि मरने के बाद अभी वो कौन से अंधेरी दुनिया में जा रहे हैं उनको पता नहीं होता। কাৰণ মৰাৰ পাছত কোনটো অন্ধকাৰ জগত গৈ আছে গম নাপায় इसके लिए हमने हमारे आत्मिक बीमारी के बारे में ठीक ठीक रीति से जानना जरूरी है, সেইকাৰণে আমি আমাৰ আত্মিক বেমাৰৰ বিষয়ে ঠিক ৰূপে জনাৰ और দৰকাৰ आत्मिक इलाज हमने ठीक रीति से पाना है, আৰু আত্মিক চিকিৎসা ঠিক ৰূপে পাব লাগে और हम तैयार होना है ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। আৰু তৈয়াৰ হ'ব লাগে যেতিয়া আমি স্বৰ্গ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰো इसके लिए आप सब लोग चर्च आते हो, সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোৱে গীৰ্জাত इसलिए आप আহে परमेश्वर का वचन सुनते हो, সেইকাৰণে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনে इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के सामने खड़े हो, সেইকাৰণে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্মুখত যেতিয়া থিয় হয় आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरे मन में क्या समस्या है मैं नहीं जानता हूँ, আপুনি এইটো
এইটো জানাৰ দৰকাৰ যে মোৰ মনত কি প্ৰব্লেম আছে মই নাজানো मैं आत्मिक समस्या को नहीं जानता हूँ, মই আত্মিক সমস্যা নাজানো लेकिन अगर मैं आज परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनूंगा तो কিন্তু আজি যদি মই ঈশ্বৰৰ বাক্য ধ্যান দি শুনো मेरी आत्मिक समस्या मुझे समझ में आएगी, মই আত্মিক সমস্যা বুজি পাম और ये आत्मिक समस्या कैसे सुलझती है ये समझ में आएगा। আৰু এই আত্মিক সমস্যা কেনেকে ঠিক হয়তো বুজি পাম मेरे पास परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास आ जाएगा, মোৰ লগত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সত্য বিশ্বাস আহিব और मेरे पास स्वर्ग में जाने का सही विश्वास होगा। আৰু মোৰ লগত স্বৰ্গত যোৱাৰ প্ৰতি সঠিক বিশ্বাস হ'ব तो जब मैंने मेरे अंदर के शरीर की बीमारी को जाना कि मुझे ब्लड प्रेशर है, যেতিয়া মই মোৰ ভিতৰৰ বেমাৰ গম পালো যে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে तो उस समय से मैं नम्रता से डॉक्टर की सुनता हूँ। মই তেতিয়াৰ পৰা নম্ৰতাৰে ডাক্তৰৰ কথা শুনো तो डॉक्टर ने मुझे कहा ऐसे ऐसे दवाई खाओ बोल के, ডক্টৰে মোক ক'লে এনেকৈ এনেকৈ দাৱাই খোৱা तो उसके बाद हमारे भाई बहनों को पता चल गया। তাৰপাছত আমাৰ ভাই ভনীয়ে গম পালে अभी मेरे लिए सब भाई बहन डॉक्टर हैं। এতিয়া মোৰ কাৰণে চব ভাই ভনী ডক্তৰ হয় कोई मुझे बोलते हैं लहसुन खाओ, কোনোবাই মোক কয় লচুন খোৱা कोई मुझे कहते हैं इमली खाओ, কোনোবাই মোক কয় ইমলি খোৱা कोई मुझे कहते हैं ये खाओ वो खाओ। কোনোবাই মোক কয় ইটো খাব সেইটো খাব अभी तक सभी चीज एक ही साथ में इलाज तो नहीं कर सकता, সকলো বস্তু একেবাৰেতো চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰো लेकिन जब मेरे बारे में दूसरों को पता चलता है वो मेरे मददगार बन जाते हैं। কিন্তু মোৰ বিষয়ে আনে যেতিয়া গম পায় তাহাঁতে মোৰ হেল্পাৰ হৈ যায় तो मेरी बीमारी मेरे भाई बहनों ने जानना कोई गलत बात नहीं है, মোৰ বেমাৰটো মোৰ ভাই ভনীসকলে জানাতো একো ভুল কথা वो নহয় मेरे शत्रु नहीं है, তাহাঁতে মোৰ শত্ৰু নহয় वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। তাহাঁতে মোৰ বিষয়ে ভাল ভাবে वो कैसे हमारा पास्टर इस ब्लड प्रेशर की समस्या से बाहर आ जाए वो सोचते हैं। কেনেকে আমাৰ পাষ্টৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ সমস্যাৰ পৰা বাহিৰত আহিব সেইটো ভাবে वो नहीं चाहते कि अभी मैं मर जाऊं ना, তাহাঁতে নিবিচাৰে মই এতিয়া মৰি যাওঁ अगर अभी मैं मर जाऊंगा तो इतना अच्छा वचन सिखाने वाला पास्टर कहाँ से मिलेगा। মই মৰি গলে ইমান ভাল বাক্য শিকোৱা পাষ্টৰ ক'ত পাব तो इसके लिए वो सीखना चाहते हैं, इसके लिए चाहते हैं कि पास्टर ना मरे। শিকিব বিচাৰে সেইকাৰণে খোজে যাতে পাষ্টৰে वो নমৰক ऐसा नहीं सोचते कि पास्टर मर जाएगा आराम से जाके प्रभु के पास रहेगा, हमारा टेंशन नहीं रहेगा उसको, ऐसा नहीं सोचते हैं। আৰু এনেকে নাভাবে যে পাষ্টৰ মৰিলে আৰামত প্ৰভুৰ ওচৰত যাব আমাৰ টেনচন নাই এনেকে নাভাবে ऐसा नहीं सोचते ना आप लोग? এনেকে নাভাবে চাগে आप सोचिए इसके बारे में, क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं? কিয় এনেকে নাভাবে क्योंकि आप भी परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हो, কাৰণ আপুনিও ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিব आप भी বিচাৰে परमेश्वर के प्रति विश्वास सीखना चाहते हो। আপুনিও ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস শিকিব বিচাৰে इसके लिए हमारे मन की दिशा प्रॉपर अगुवाई किया जाना है। সেইকাৰণে আমাৰ মনৰ দিশটো প্ৰপাৰ চলাব লাগিব तो जब ये बाइबल को जब आप ठीक रीति से पढ़ते हो যেতিয়া এই বাইবেলটো ঠিক ৰূপে পঢ়ে तो ये बाइबल के द्वारा ही आपका मन आप देख सकते हो, जैसे आईने में ही आप अपने चेहरे को देखते हो। এই বাইবেলতে আপোনাৰ মন চাব পাৰে যেনেকে আইনাতহে নিজৰ মুখখন तो চাব हम পাৰে हमारे पास आंख है আমাৰ লগত চকু আছে लेकिन हम खुद का चेहरा नहीं देख सकते हैं, কিন্তু নিজৰ মুখখন চাব तो নোৱাৰো इसके लिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। সেইকাৰণে আমি আইনাৰ ব্যৱহাৰ जब কৰো हम आईने में देखते हैं हमारा चेहरा हमको दिखाई देता है। আইনাত চালে আমাৰ মুখখন আমি চাব পাৰো अभी मेरा बाल कैसा है मुझे पता नहीं है, এতিয়া মোৰ চুলিটো কেনেকুৱা মই গম নাপাওঁ लेकिन अगर मैं आईने में देखूंगा तो কিন্তু যদি মই আইনাত চাওঁ मेरा बाल ठीक रीति से बिठाया है या नहीं बिठाया है मुझे समझ में आता है। মোৰ চুলিখিনি ভালকে বহাইছো নে বহোৱা নাই মই বুজি পাওঁ तो हम अपनी आत्मा देख नहीं सकते हैं, আমি নিজৰ আত্মাক চাব हम নোৱাৰো ईश्वर का आत्मा भी देख नहीं सकते हैं, আমি ঈশ্বৰৰ আত্মাও চাব क्योंकि নোৱাৰো आत्मा का दुनिया इनविजिबल है, কাৰণ আত্মাৰ জগতটো নেদেখো लेकिन आत्मा दिखाई देता है। আত্মাটো দেখা পাওঁ कहाँ? वचन में दिखाई देता है, ক'ত দেখা পাওঁ বাক্যত क्योंकि वचन में यीशु ने कहा मेरा वचन ही मेरा आत्मा है। কাৰণ যীশুৱে কৈছে মোৰ বাক্যই মোৰ আত্মা হয় तो बाइबल ने कहा ईश्वर आत्मा है, বাইবেল কৈছে যে ঈশ্বৰে আত্মা और হয় लिखा है कि मेरा वचन ही आत्मा है, মোৰ বাক্যই আত্মা হয় वचन ही ईश्वर है। বাক্যই ঈশ্বৰ হয় इसका मतलब अगर आप वचन देखना जान जाओगे तो আৰু যদি বাক্য দেখিবলৈ জানি যায় आपने ईश्वर को देख लिया, ऐसा है। তেনেহলে ঈশ্বৰ দেখিলে अगर वचन के अंदर ईश्वर के मन को अगर आप मिलोगे तो বাক্যৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ মন যদি লগ পায় इसका मतलब है आप ईश्वर के मन को मिल गए। ঈশ্বৰৰ মন লগ পালে तो जब हम हमारे जीवन को जीते हैं যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱন জীয়াও तो जैसे मैंने कहा मेरे शरीर का सिम्टम्स कैसे दिखाई दिया मुझे, মোৰ শৰীৰৰ চিনবোৰ মই কেনেকে দেখা পালো हाँ मेरे पैर में कुछ तो काले काले दाग होने शुरू हो गए हैं। মোৰ ভৰিত কিবা কিবি ক'লা দাগ হ'ব ধৰিলে वो दाग को जब किसी ने देखा तेरे शरीर में समस्या है ऐसा बोल रहे हो আৰু लोग। দাগটো চাই কোনোবাই ক'লে যে তোমাৰ শৰীৰৰ সমস্যা হৈছে मैं जो सोचता था मेरे सॉक्स की वजह से समस्या है, মইতো ভাবিছিলো মোৰ চক্সৰ কাৰণে क्योंकि সমস্যা मैं निरंतर सॉक्स पहनता हूँ, কাৰণ মই কন্টিনিউ চক্স मुझे পিন্ধো लगता था सॉक्स की वजह से समस्या है, মই ভাবিছিলো যে চক্স পিন্ধাৰ কাৰণে সমস্যা लेकिन হৈছে किसी दूसरे ने देख के कहा नहीं ये ब्लड प्रेशर की समस्या है। কিন্তু বেলেগে চাই পেলাই ক'লে যে নহয় ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা अभी मैं जो समस्या जान रहा हूँ सही समस्या जान रहा हूँ क्या? মই যে সমস্যাটো জানিছো ঠিক জানিছো নে नहीं, নহয় सॉक्स की वजह से ऐसा नहीं है ना। চক্সৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয়
किसकी वजह से मेरा पैर में वो ब्लड वेसल टूटे हुए हैं? কিয় ব্লাড ভেসেলছ কিহৰ কাৰণে মোৰ ভৰিত ব্লাড ভেসেল ब्लड प्रेशर की वजह से। ব্লাড প্ৰেছাৰ কাৰণে सॉक्स की वजह से ऐसा नहीं है। চক্সৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয়। इसका मतलब क्या है? তাৰ মানে কি हमारे पास जो ज्ञान होता है, ज्ञान भी सही चाहिए। আমাৰ লগত যে জ্ঞান থাকে জ্ঞানটো ঠিক লাগে। अगर गलत ज्ञान हो जाएगा तो ভুল জ্ঞান যদি আহি যায় गलत ज्ञान हमको मार देता है। ভুল জ্ঞানে আমাক মাৰি পেলায়। बचने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। বাচিবলৈ হলে ঠিক জ্ঞান हाँ, লাগে। मेरे पैर में ऐसे दाग सॉक्स की वजह से, ये सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है? মোৰ ভৰিত যে এইবিলাক দাগ চক্সৰ কাৰণে এইটো ঠিক জ্ঞান নে ভুল জ্ঞান? भूल ज्ञान, गलत ज्ञान है। ভুল জ্ঞান হয়। वो ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा है, ये सही ज्ञान है गलत ज्ञान है? ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে এইটো ঠিক জ্ঞান নে ये ভুল सही জ্ঞান? ज्ञान है। এইটো ঠিক জ্ঞান। ये ज्ञान मैंने कहाँ से लेना चाहिए? এই জ্ঞানটো মই ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে? अपने आप से लेना चाहिए নিজৰ পৰা ল'ব লাগে নে? या मेरे ब्लड के प्रेशर को चेक कर पाने वाला डॉक्टर, उससे मैंने ये ज्ञान लेना चाहिए? নে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ চেক কৰিব পৰা ডক্টৰৰ পৰা জ্ঞান ল'ব লাগে? तो मेरे शरीर की बीमारी का ज्ञान कहाँ से लेनी चाहिए? মোৰ শৰীৰৰ বেমাৰৰ জ্ঞান ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে? डॉक्टर से लेना चाहिए। ডক্টৰৰ পৰা ল'ব क्योंकि লাগে। डॉक्टर मेरे शरीर की बीमारियों के बारे में अच्छे से जानता है কাৰণ ডক্টৰে মোৰ শৰীৰৰ বেমাৰৰ বিষয়ে ভালদৰে और জানে वही मुझे सही रीति से दवाइयां दे सकता है। আৰু তেওঁৱে মোক ঠিক ৰূপে দাৱাই দিব পাৰে। उसी रीति से अगर आप अपना आत्मिक जीवन यीशु से नहीं सीखेंगे तो সেই ধৰণে যদি আত্মিক জীৱন যীশুৰ পৰা নিশিকে आप आत्मिक समस्याओं को कभी भी समाधान नहीं कर सकते हो। আত্মিক সমস্যা কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। ये दुनिया में अलग अलग प्रकार की चीजें होती है এই পৃথিৱীত বেলেগ ধৰণৰ বস্তু থাকে और अलग अलग प्रकारों में चीजों में अलग अलग समस्याएं होती है। আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ সমস্যা থাকে। तो हमारे चर्च में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, আমাৰ গীৰ্জাত বহুত ডাঙৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। मेन कंप्यूटर है। মেইন কম্পিউটাৰ আছে। वो कंप्यूटर मैंने बहुत लंबे समय प्रार्थना के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा पाया हुआ कंप्यूटर है। আৰু দীঘলীয়া প্ৰাৰ্থনা আৰু অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা পোৱা কম্পিউটাৰ হয়। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे से हमने उसको खरीदा है। আৰু বহুত পইচা দি পেলাই আমি এইটো কিনিছো। क्योंकि वो कंप्यूटर मैंने क्यों खरीदा? সেই কম্পিউটাৰ মই কিয় কিনিছো? मैं सच में हमारा जो यूट्यूब है, फेसबुक है, जूम है, अच्छे से चलाना चाहता हूँ। কাৰণ আমাৰ ফেচবুক ইউটিউব জুম ভালদৰে মই চলাব বিচাৰো। कभी कभी हमको फेसबुक, यूट्यूब, जूम साथ में रन करना पड़ता है। কেতিয়াবা ফেচবুক ইউটিউব জুম একেলগে চলাব লগা इसके হয়। लिए हमको बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत होती সেইকাৰণে আমাৰ বহুত শক্তিশালী কম্পিউটাৰ है। লাগে। साधारण कंप्यूटर के द्वारा हम वो काम नहीं कर सकते। সাধাৰণ কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা আমি এইটো কৰিব तो मैंने নোৱাৰো। बहुत पावर वाला कंप्यूटर खरीदा। মই বহুত পাৱাৰ কম্পিউটাৰ কিনিলো। वो कंप्यूटर लाने के बाद সেই কম্পিউটাৰ আনাৰ सिर्फ পাছত उतनी चीजें नहीं है वो कंप्यूटर में। অকল এইখিনি বস্তু নাই সেই কম্পিউটাৰত। मेरा बेटा गेम खेलना बहुत पसंद करता है। মোৰ ল'ৰাই গেম খেলিব বহুত ভাল পায়। इसके लिए जब भी पापा जी वहाँ पे नहीं है, সেইকাৰণে যেতিয়া পাপা নাই कब वो कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल हो जाएगा मुझे ही पता नहीं चलता है। কেতিয়া সেই কম্পিউটাৰত গেম ইনষ্টল হৈ যায় ময়ে গম और वो নাপাওঁ। बहुत माहिर है, আৰু তেওঁ বহুত মাহিৰ হয়। इसके लिए 2 पेज बना के रख देता है। সেইকাৰণে দুটা পেজ বনাই ৰাখি দিয়ে। पापा जब कंप्यूटर खोलता है, पापा का पेज खुलता है। পাপাই যেতিয়া কম্পিউটাৰ খোলে পাপাৰ পেজটো খোলে। लेकिन जब बेटा कंप्यूटर खोलता है, पापा का पेज और बेटा का पेज दोनों पेज खुल जाता है। আৰু যেতিয়া ল'ৰাই কম্পিউটাৰ খোলে পাপাৰ পেজ আৰু ল'ৰাৰ পেজ দুটাই খোল খায়। और बेटा अपने रूम का दरवाजा बंद करके अंदर वो गेम खेलता है। আৰু ল'ৰাই নিজৰ ৰুমৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত গেম খেলে। और मैं जानता हूँ कि उसको गेम पसंद है, वो खेलता है। আৰু মই জানো যে সি গেম ভাল পায় সেইকাৰণে খেলে। इसलिए घंटा 2 घंटा वो खेलता है, मैं उसको मना भी नहीं करता हूँ। আৰু 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা খেলে মই মানাও নকৰো। तो लेकिन समस्या क्या होती है? এইটো প্ৰব্লেমটো কি হয়? जब भी वो कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल करता है, যেতিয়া কম্পিউটাৰত গেম ইনষ্টল কৰে उसके गेम इतने ऐसे पावरफुल होते हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड सब चीजें होती है, আৰু গেমটো ইমান শক্তিশালী আৰু ইন্টাৰনেটৰ লগত জড়িত হয় मेरा ऐसा हाई फाई कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। মোৰ ইমান হাই ফাই কম্পিউটাৰ হেং হৈ যায়। और वो कंप्यूटर समस्या शुरू करना शुरू कर देता है। আৰু সেই কম্পিউটাৰত প্ৰব্লেম হ'ব ধৰে। मतलब मेरे कंप्यूटर को ब्लड प्रेशर हो जाता है মানে মোৰ কম্পিউটাৰত ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈ যায়। और उसके ब्लड वेसल टूटना शुरू हो जाते हैं। আৰু তাৰ ব্লাড ভেছেলছ ভাঙা আৰম্ভ तो হয়। मैं मेरे बेटे से पूछता हूँ समस्या क्या है? মই ল'ৰাক সুধো যে প্ৰব্লেম কি? वो इधर उधर की बातें करते रहता है। ইফালে ইফালে কথা কৈ तो থাকে। शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था। আৰম্ভণিতে মই বুজি পোৱা নাছিলো। तो लेकिन जैसा समय बीतता गया मैं दूसरे पास्टर लोगों से पूछने लगा ऐसा समस्या होता क्यों है? যে এনেকা প্ৰব্লেম হতে মই বেলেগ পাষ্টৰক সুধিব ধৰিলো যে কিয় এনেকা तो হয়। मुझे किसी ने बताया ये तेरे बेटा जो तुझसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है उसके काम है। আৰু তোমাৰ ল'ৰা যোন তোমাতকে বহুত বেছি স্মাৰ্ট তেওঁৰ কাম হয়। तो बाद में जाकर के मैंने उसको चिल्लाना शुरू किया, পাছলৈ গৈ মই তেওঁক চিঞৰিব ধৰিলো ये कंप्यूटर में तू कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं करेगा। এই কম্পিউটাৰত তুমি একো গেম ইনষ্টল अगर तू নকৰিবা। कंप्यूटर खेलना है, गेम खेलना है तो दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर। যদি কম্পিউটাৰত গেম খেলিব বিচাৰ বেলেগ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ मैंने কৰা। उसको सेपरेट कंप्यूटर भी दिया। মই তাক বেলেগ কম্পিউটাৰো দিলো। ये सेपरेट कंप्यूटर में तू गेम खेलना, अगर तुझे खेलना है मुझे बता के 1 घंटा भर खेल, मुझे कोई समस्या नहीं है। যদি খেলিব বিচাৰা মোক কবা 1 ঘণ্টা খেলিবা মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। तो मेरा बेटा थोड़ी समय सारे गेम निकाल के रख
देता है অলপ সময়ৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাই গোটেই গেম ওলাই और ৰাখি দিয়ে कंप्यूटर बहुत अच्छा चलता है, আৰু কম্পিউটাৰ বহুত ভালদৰে চলে कोई समस्या नहीं होती। একো প্ৰব্লেম নহয় लेकिन अचानक कल फिर से मेरा कंप्यूटर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, যোৱাকালি আকৌ মোৰ কম্পিউটাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হৈ तो গ'ল आज सुबह हमारा यूट्यूब चलते चलते बंद हो गया। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইউটিউব চলি থাকোতে বন্ধ तो अभी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर हमारी जोनाली बहन है, এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আমাৰ জোনালী ভনী হয় वो बोलने लगी पास्टर कंप्यूटर को ब्लड प्रेशर हो गया, তাই ক'ব ধৰিলে পাঁচটা কম্পিউটাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ব अभी ধৰিছে ऐसा ऐसा हैंग मार रहा है। এনেকুৱা হেং হ'ব ধৰিছে तो मुझे लगा फिर से क्या कंप्यूटर को समस्या होने लग মই गई। ভাবিলো আৰু কি কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিছে तो मुझे पता चल गया मेरे बच्चे ने फिर से गेम इंस्टॉल कर दिया है। মই গম পালো যে মোৰ ল'ৰা আকৌ গেম ইনষ্টল কৰিছে तो हालांकि मैं उसको समय समय में बोलता हूँ तो उसमें गेम इंस्टॉल मत कर, যদিবা তেওঁক মই সময়ে সময়ে কওঁ যে গেম क्योंकि वो ইনষ্টল अपने मन নকৰিবা को कंट्रोल नहीं कर सकता। কাৰণ তেওঁ নিজৰ মন নিয়ন্ত্ৰণ इसलिए কৰিব ऐसे নোৱাৰে चीजें कंप्यूटर में डाल देता है, वो चीजें कंप्यूटर को बर्बाद करती है। এনেকুৱা বস্তু কম্পিউটাৰত ঢালি দিয়ে যিয়ে কম্পিউটাৰটো বেয়া কৰি तो দিয়ে हमारा मन का दुनिया भी कंप्यूटर के जैसा ही है। আমাৰ মনৰ জগতো সেই কম্পিউটাৰৰ নিচিনা जब आपके मन में सिर्फ परमेश्वर का वचन होता है, যেতিয়া আপোনাৰ মনত অকল ঈশ্বৰৰ বাক্য जब থাকে चर्च का मन बहता है, যেতিয়া গীৰ্জাৰ মন जब বৈ पास्टर যায় का मन बहता है, যেতিয়া পাষ্টৰৰ মন आप বৈ যায় सब स्वर्गदूत जैसे दिखाई देते हो। সকলোৱে স্বৰ্গদূতৰ নিচিনা দেখিবলৈ मुझे হৈ ऐसे যায় लगता है इतने सुंदर भाई बहन कहाँ से आ गए, মই ভাবিব ধৰো যে ইমান ধুনীয়া ভাই ভনী ক'ৰ পৰা আহি গ'ল इतना कलीसिया से कैसे प्यार कर सकते हैं, গীৰ্জাক ইমান ভাল কেনেকে পাব পাৰে और सुसमाचार का काम इतना प्यार से कैसे कर सकते हैं। সুবাৰ্তাৰ কাম ইমান মৰমেৰে কেনেকে কৰিব পাৰে लेकिन शैतान भी तो है ना, কিন্তু শয়তানতো আছে आपके मन रूपी कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल कर देता है। আমাৰ মনৰূপী কম্পিউটাৰত গেম ইনষ্টল কৰি तो দিয়ে आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं आना शुरू हो जाती তেনে है। মনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিচাৰ ধাৰণা আহিব ধৰে फिर आप स्पिरिचुअली आप ब्लड प्रेशर आज हो जाता है आपको, আত্মিক ৰূপে ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈ যায় फिर आपके ब्लड वेसल फटना शुरू हो जाते हैं, তাৰপিছত ব্লাড ভেছেলছ ফাটা আৰম্ভ फिर হয় आप आत्मिक जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। তাৰপিছত আত্মিক জীৱন ভালদৰে জীয়াব পৰা নাই आज बहन चर्च में क्यों नहीं है, আজি এই ভনী গীৰ্জাত কিয় নাই वो बोलते हैं घुटने में बुखार है। কয় যে আঁঠুত জ্বৰ হৈছে घुटने में बुखार कैसे हो गया, আঁঠুত জ্বৰ কেনেকে হ'ল वो पता नहीं लेकिन हो गया। নাজানো কিন্তু হৈ तो গ'ল वो वचन नहीं सुन पा रहे हैं, বাক্য শুনিব নোৱাৰে वो कलीसिया के साथ एक मन होके जी नहीं पा रहे हैं, গীৰ্জাৰ লগত একমত হৈ জীয়াব थोड़े পৰা समय নাই के बाद चर्च में नहीं आ पा रहे हैं। অলপ সময় পাছত গীৰ্জাত আহিব ऐसी পৰা নাই बहुत सारी समस्याएं क्यों हैं, এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম কিয় হয় क्योंकि हमारे मन में काम करने के लिए शैतान भी तत्पर है। কাৰণ আমাৰ মনত কাম কৰিবলৈ শয়তানো আছে इसके लिए हमने निरंतर परमेश्वर के वचन के आगे खड़ा रहने का दुनिया पाना चाहिए। সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যত থিয় হোৱাৰ জগতটো পাৱাৰ जब आप দৰকাৰ परमेश्वर के वचन के सामने खड़े रहते हो, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ সন্মুখত থিয় দিয়ে आपको ये ज्ञान होगा कि अभी जो मेरे पास है ये मन परमेश्वर का दिया हुआ मन नहीं है। এই জ্ঞানটো হ'ব যে মোৰ লগত যি আছে এইটো ঈশ্বৰ দিয়া মন নহয় तो अभी जैसे कि अभी मेरा कंप्यूटर के लिए মোৰ কম্পিউটাৰটোৰ और কাৰণে मेरे खुद के ब्लड प्रेशर के लिए মোৰ নিজৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে हर एक चीज का इलाज है। সকলো বস্তুৰ চিকিৎসা আছে तो डॉक्टर ने मुझे कहा आप ये मेडिसिन खा लो, ডাক্তৰে মোক ক'লে যে আপুনি এইটো মেডিচিন तो वो जब मैं दवाई खाता हूँ মই যেতিয়া দাৱাইটো খাওঁ मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কন্ট্ৰলত अभी থাকে मुझे नहीं पता कि अभी बिना दवाई के मेरा ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करके जीना है, वो मुझे सीखना होगा। আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰটো কেনেকে কন্ট্ৰল কৰি জীয়াব লাগে দাৱাই নোখোৱাকৈ সেইটো মই শিকিব লাগিব वो सीखूंगा तो वो भी हो जाएगा। সেইটো শিকিলে সেইটোও হ'ব अगर मुझे जीना है तो যদি মই জীয়াব বিচাৰো मुझे जीने के बारे में सीखना होगा। মই জীয়াৰ বিষয়ে শিকিব লাগিব अभी मेरा कंप्यूटर दोबारा हैंग ना हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, কম্পিউটাৰটো আকৌ যেতিয়া হেং নহয় কি কৰিব লাগিব मेरे बेटे के आगे फिर से मुझे जाना होगा। মোৰ ল'ৰাৰ আগত আকৌ যাব লাগিব मेरे प्यारे लाल, মোৰ মৰমৰ ল'ৰা मेरा प्यारा प्यारा बेटा, মৰমৰ ল'ৰা दया करके उसमें से गेम निकाल दे। দয়া কৰি সেই তাৰ পৰা গেম ওলাই দিয়া अगर तू कंप्यूटर में से गेम नहीं निकालेगा तो কম্পিউটাৰৰ পৰা যদি তুমি গেম নোলোৱা कल सुबह भी तेरे पापा यूट्यूब में प्रचार नहीं कर पाएंगे, কালি ৰাতিপুৱা তোমাৰ পাপা ইউটিউবত প্ৰচাৰ फिर কৰিব से নোৱাৰিব कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। আকৌ কম্পিউটাৰ হেং হ'ব कंप्यूटर हैंग ऐसे ही नहीं होता, কম্পিউটাৰ হেং এনেই নহয় मुझे ब्लड प्रेशर ऐसा ही नहीं होता, মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ এনেই নহয় वैसे हमारा मन भी ऐसे ही नहीं बिगड़ता। আমাৰ মনটো এনেই বেয়া হৈ নাযায় हमारा मन बिगड़ने का भी कारण है, আমাৰ মন বেয়া হৈ যোৱাৰো কাৰণ हमें আছে शरीर में ब्लड प्रेशर होने का भी कारण है, আমাৰ শৰীৰত ব্লাড প্ৰেছাৰ হোৱাৰো इतना কাৰণ আছে मूल्यवान कंप्यूटर वो बिगड़ने का भी कारण है। ইমান মূল্যৱান কম্পিউটাৰ বেয়া হোৱাৰো কাৰণ तो আছে हमने वो कारण को डिस्कवर करना আমি है সেই কাৰণটো ডিস্কভাৰ और কৰা वो দৰকাৰ कारण को सॉल्व करना है, আৰু সেই কাৰণটো সমাধান কৰা तब দৰকাৰ जाकर के मैं जी सकूंगा, তেতিয়া গৈ থৈ মই জীয়াব तब পাৰিম वो कंप्यूटर काम कर सकेगा, তো সেই কম্পিউটাৰটো কাম কৰিব পাৰিব तब आप लोग भी आत्मिक जीवन जी सकेंगे। আপোনালোকেও আত্মিক জীৱন জীয়াব পাৰিব लेकिन अगर आप बाइबल को बंद करोगे, কিন্তু যদি বাইবেলটো বন্ধ কৰে परमेश्वर के वचन के प्रति अपने कान बंद कर दोगे, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি নিজৰ কাণ যদি বন্ধ अपने मन কৰে को अगर आप कठोर करके आप परमेश्वर के सामने रहोगे तो নিজৰ মন কঠোৰ কৰি যদি ঈশ্বৰৰ আগত জীয়াই आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। সমস্যাটো সমাধান নহব सही है ना? হয়নে
अगर मैं मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई को खाऊंगा नहीं बोलूंगा, মই যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ দাৱাই নাখাওঁ বুলি কওঁ और जो मुझे खाना है, जैसा मुझे खाना है, मैं खा के जीऊंगा बोलूंगा আৰু तो, যাহা তাহা যি খাব মই সেইটো খাই যদি জীয়াও अगर मैं डॉक्टर की सलाह नहीं सुनता हूं तो ডক্টৰৰ যদি উপদেশ নুশুনো मैं जीऊंगा या मरूंगा? মই জীয়াম নে মৰিম गुवाहाटी चर्च में खबर भी नहीं है, कहाँ गाड़ोगे आप मुझे? গুৱাহাটী গীৰ্জাততো কবৰো নাই ক'ত পুতিব মোক मुझे लगता है ब्रदर को अपने घर में लेके जाके रखना पड़ेगा मुझे। ব্ৰাদাৰ घरতে লৈ যাব ৰাখিব जतिन डेगा अपने घर में लेके मुझे रखना पड़ेगा, एक स्पेशल रूम दे करके। আৰু যতীন ডেকা মোক এটা স্পেচিয়েল ৰুমতে ৰাখিব লাগিব सही है ना? হয়নে जैसे गोवा में किसी संत का बॉडी था ना, গোৱাত এজন চেণ্টৰ বডি আছিলে अभी भी है या नहीं मुझे पता नहीं। এতিয়া আছে নে নাই নাজানো तो आपको सेंट फ्रांसिस, राइट? हाँ, ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जानते हैं। तो मेरा भी सेंट सेंट उदयराज का बॉडी आप ऐसे रखना चाहते हैं क्या? চেণ্ট উদয়ৰাজৰ শৰীৰ এনেকে ৰাখিব आप বিচাৰে ऐसा रखने का जरूरत नहीं है, ओके? এনেকে ৰাখাৰ प्रयोजन নাই तो आप सोचिए इसके बारे में। এই বিষয়ে ভাবি চাওক अगर मुझे जीना है तो মই যদি জীয়াব লাগে मुझे जीने को सीखना पड़ेगा। মই জীয়াবলৈ শিকিব अगर मैं मेरे লাগিব कंप्यूटर को चलाना है तो মই যদি মোৰ কম্পিউটাৰ চলাব লাগে ऐसे ही करके नहीं होगा। এনেই নহব मुझे मेरे बेटे से उसके गेम को निकलवाना पड़ेगा। মই মোৰ ল'ৰাৰ পৰা সেই গেমটো ওলাব লাগিব अगर वो गेम नहीं निकालेगा, वो मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जैसा मुझे इस्तेमाल करना है। আৰু গেমটো নোলালে মই যেনেকে ইউজ কৰিব বিচাৰো সেনেকে নোৱাৰিম क्योंकि समय समय में मेरा कंप्यूटर नेचुरली हैंग मरेगा। কাৰণ সময়ে সময়ে মোৰ কম্পিউটাৰটো নেচাৰেলি হেং মাৰিব समय समय में अगर मैं अपने शरीर को अगर केयर नहीं करता हूँ तो সময়ে সময়ে যদি মোৰ শৰীৰটো কেয়াৰ নকৰো मेरा शरीर भी हैंग मारेगा, नहीं मारेगा? মোৰ শৰীৰে হেং মাৰিব নে নাই पता चला एक दिन आपका पास्टर ऐसा हो गया, এদিন বোলে পাষ্টাৰ এনেকুৱা হৈ तो গ'ল पास्टर ऐसे प्रचार करने को आ गए, আৰু আপোনাৰ পাষ্টাৰ এনেকে প্ৰচাৰ কৰিব तो आपको पास्टर को देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा ना? আপোনাৰ পাষ্টাৰক চাবলৈও ভাল নালাগিব सही है कि হয়নে? नहीं? হয়নে पास्टर ऐसा ऐसे pulpit से পাষ্টাৰ प्रचार যদি कर रहा এনেকে होगा, প্ৰচাৰ কৰে अच्छा लगेगा आपको? ভাল লাগিব नीरन भाई बोलेगा मैं ये चर्च में नहीं जाऊंगा, নীৰেণ ভাই ক'ব মই এই গীৰ্জাতে নাযাওঁ मैं उस चर्च में जाऊंगा जहाँ पास्टर सीधा खड़ा होकर प्रचार करता মই है। সেইটো গীৰ্জাত যাম য'ত পাষ্টাৰে চিধা হৈ প্ৰচাৰ ये কৰে चर्च का पास्टर सीधा खड़ा होकर प्रचार भी नहीं करता, मैं क्या करूं उधर जा करके? পাষ্টাৰে চিধা হৈও প্ৰচাৰ নকৰে মই কি কৰিম तो आपका जब मन का दुनिया बिगड़ता है, যেতিয়া মনৰ জগতটো বেয়া হয় ऐसे ही नहीं बिगड़ता, এনেই বেয়া নহয় ऐसे ही खराब नहीं होता। এনে বেয়া হৈ और নাযায় सब चीज का जो उगम है आपके मन से है, আৰু সকলো বস্তুৰ যোনটো আৰম্ভণি মনৰ পৰা হয় इसलिए आपका मन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। সেইকাৰণে মনটো বহুত দৰকাৰী হয় इसलिए परमेश्वर जब हमारे मन की अगुवाई करते हैं, সেইকাৰণে ঈশ্বৰ যেতিয়া আমাৰ মনটো চলায় हमारे मन को प्रेसाइसली अगुवाई करना चाहते हैं। আমাৰ মনটো সঠিক ৰূপে চলাব বিচাৰে एक जिसने कंप्यूटर को बनाया है, যোনে কম্পিউটাৰটো বনাইছে उसको भी सिस्टमेटिक बनाया है। তাকো চিষ্টেমেটিকেলি বনাইছে उसमें प्रॉब्लम होते हैं तो भी उसको सॉल्व करने का रास्ता भी बनाया है। সমস্যা থাকিলে সমাধান কৰাৰ ৰাস্তাও বনাইছে तो कंप्यूटर में समय समय में वायरस नाम की कोई चीज आती है, আৰু কম্পিউটাৰত সময় সময় ভাইৰাছ নামৰ বস্তু আহে तो वो वायरस कंप्यूटर को खराब करता है, ऐसा नहीं है। এনেকুৱা নহয় যে ভাইৰাছে কম্পিউটাৰটো বেয়া अगर কৰে वायरस बनाया है किसी ने तो एंटीवायरस भी बनाया गया है। ভাইৰাছ যদি বনাইছে এন্টিভাইৰাছো বনাইছে तो जो लोग मूर्ख होते हैं যি মানুহ মূৰ্খ वो হয় कहते हैं वायरस की वजह से मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। তাহাঁতে কয় যে ভাইৰাছৰ কাৰণে মোৰ কম্পিউটাৰ বেয়া হৈ लेकिन जो গ'ল लोग बुद्धिमान होते हैं কিন্তু যিবিলাক বুদ্ধিয়ক वो হয় कहते हैं एंटीवायरस ने मेरे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखा है। তেওঁ কয় যে এন্টিভাইৰাছে মোৰ কম্পিউটাৰটো সুৰক্ষিত तो ৰাখিছে बुद्धिमान लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं एक्सपायर होने से पहले। আৰু এক্সপায়াৰ হোৱাৰ আগতে বুদ্ধিমান মানুহে কম্পিউটাৰত এন্টিভাইৰাছ ৰাখে तो मूर्ख लोग एंटीवायरस को डिस्पाइस करते हैं। আৰু মূৰ্খ মানে এন্টিভাইৰাছক জ্ঞান अरे কৰে मैंने इतना महंगा कंप्यूटर खरीदा है, ইমান দামী কম্পিউটাৰ কিনিছো ऐसे ही चल जाएगा वो। এনেই চলি যাব नहीं, নহয় ऐसा नहीं है। এনেকুৱা নহয় तो हर एक चीज जो बनाई गई है সকলো যি বস্তু বনাইছে उसका एक प्रोसेस है। তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं, আমি সৃষ্টিকৰ্তা নহয় हम सृष्टि हैं। আমি সৃষ্টি হয় हमें बनाया गया है, আমাক বনোৱা হৈছে बनाने वाले ने हमको बनाया है। বনোৱাজনে আমাক বনাইছে जिस सिस्टम से उसने हमको बनाया है उसी सिस्टम में हम चल सकते हैं। যি চিষ্টেমেৰে আমাক বনাইছে সেই চিষ্টেমেদি আমি চলিব পাৰো लेकिन इस संसार में पाप की शक्ति भी है, কিন্তু এই পৃথিৱীত পাপৰ শক্তিও আছে शैतान की शक्ति भी है। শয়তানৰ শক্তিও আছে ये ईश्वर का विरोधी है। সেইটো ঈশ্বৰৰ বিৰোধী হয় इसलिए ईश्वर आपको ऐसे चलाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको ऐसे चलाना चाहता সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক এনেকে চলাব বিচাৰে কিন্তু শয়তানে এনেকে চলাব है। तो বিচাৰে फिर ये संसार और शैतान की सब चीजों से आप कैसे विजय प्राप्त करोगे? এই সংসাৰ শয়তানৰ চব বস্তুৰ পৰা কেনেকে জয় হ'ব আপুনি अगर आप पहले यूहन्ना को देखोगे तो প্ৰথম যোহন যদি চাই आइए हम बाइबल देखेंगे। বলক বাইবেলটো চাওঁ
पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 যোহানৰ 5 অধ্যায় 5 का 5। 5 পদ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। যীশু যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয়, ইয়াক যিজনে বিশ্বাস কৰে, তেওঁৰ বাহিৰে জগতক জয় কৰোতা কোন? 4 वचन अगर आप पढ़ोगे तो 4 পদটো যদি পঢ়ে, पहला यूहन्ना उसका 5 का 4। 1 যোহানৰ 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। কাৰণ যিকোনো ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱা হয় তেওঁ জগতক জয় কৰে, আৰু জগতক জয় কৰা যি জয় সেয়ে আমাৰ বিশ্বাস। अगर हमारे पास सही विश्वास है तो আমাৰ লগত যদি সঠিক বিশ্বাস আছে, हम संसार पर जय प्राप्त करके जिएंगे। আমি সংসাৰৰ লগত জয়যুক্ত হৈ যাম। आप समझ रहे हैं? হয়নে? क्यों? কিয়? पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वचन अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? 19 वचन। 1 যোহান 5:19 পদ। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। আমি জানো যে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা হওঁ আৰু গোটেই জগত পাপ আত্মাৰ অধীনত থাকে। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। আমি আৰু জানো যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আহিল আৰু যিহৰ দ্বাৰা আমি সেই সত্যজনক জানিছো, এনে চিত্ত আমাক দিলে আৰু আমি সেই সত্য জনাত তেওঁৰ পুত্ৰ যীশু খ্ৰীষ্টত আছো। तो वचन में क्या लिखा है? বাক্যত কি লিখিছে? सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। গোটেই পৃথিৱীখন সেই দুষ্টৰ অধীনত আছে। ये कैसा है? এইটো কি হয়? जैसे कि कंप्यूटर वायरस के वश में आ गया है। যেনেকে বা কম্পিউটাৰটো ভাইৰাছৰ অধীনত আহিছে। समझ में आया? হয়নে? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, যেতিয়া কম্পিউটাৰত ভাইৰাছ আহে, ये कंप्यूटर किसके वश में रहता है? चलाने वाले के वश में रहता है क्या वायरस के वश में रहता है? সেই কম্পিউটাৰটো কাৰ হাতত থাকে? চলোৱাজনৰ নে ভাইৰাছৰ হাতত? ये कंप्यूटर के ज्ञानी है, ये बताएंगे। वायरस के हाथ में रहता है। ভাইৰাছৰ হাতত থাকে। कंप्यूटर को कौन रूल करेगा? কম্পিউটাৰক কোনে ৰাজত্ব কৰিব? वायरस रूल करता है। ভাইৰাছে ৰাজত্ব কৰে। वायरस को कंप्यूटर के स्क्रीन में कुछ भी लेके आना होगा तो वो लेके आ जाएगा, तुक बोल के ऐसा रिवील कर देगा। আৰু ভাইৰাছে যি আনিব বিচাৰে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত সেইটোৱে লৈ আনিব। आप जो पेज खोलना नहीं चाहोगे वो पेज खुल जाएगा। যি পেজ খুলিব নিবিচাৰে সেইটোৱে খুলিব। आप जो पेज खोलना चाहोगे वो पेज उड़ जाएगा। যি পেজ খুলিব বিচাৰে সেইটো উৰি যাব। क्योंकि कंप्यूटर किसके वश में है? কাৰণ কম্পিউটাৰটো কাৰ হাতত আছে? वायरस के वश में है। ভাইৰাছৰ হাতত আছে। तो बाइबल क्या कहता है? বাইবেলে কি কয়? सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। গোটেই পৃথিৱীখন সেই দুষ্টজনৰ হাতত इसका আছে। मतलब ये संसार में सारे मानव जात का हृदय किसके वश में है? তাৰমানে এই সংসাৰৰ সকলো মানৱ জাতিৰ হৃদয় কাৰ হাতত আছে? शैतान के वश में है। শয়তানৰ হাতত আছে। इसलिए शैतान जो चाहता है वो इंसान करने के लिए विवश है। সেইকাৰণে শয়তানে যি বিচাৰে মানুহজনে সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য। इसलिए बाइबल में लिखा है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो करने वाला मैं नहीं, मुझ में बसा हुआ पाप वो करता है। সেইকাৰণে বাইবেলত কৈছে মই যি কৰিব নিবিচাৰো সেইটো যদি মই কৰো তেনেহলে কৰোতাজন মই নহয়, মোৰ ভিতৰত থকা পাপে কৰে। वो दुष्ट वो करता है, সেই দুষ্টজনে কৰে, वो पाप वो करता है। পাপে কৰে। ये संसार में अगर आप लोगों को देखोगे तो এই পৃথিৱীত যদি মানুহক চাই, मर्डर किए हुए लोगों को देखोगे और आप जाके वहां पे देखिए जेल में वो कैसे रो रहे हो लोग। মাৰ্ডাৰ কৰা মানুহক যদি গৈ পেলাই জেলত চাই চাব যে কেনেকৈ কান্দি আছে তাহাঁতে। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का खून किया है? কিমান আছে এনেকুৱা যোনে নিজৰ বাচ্চাক মাৰি कितने পেলাইছে? ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून किया है? কিমান এনেকুৱা আছে যোনে নিজৰ মাক বাপেকক মাৰি कितने পেলাইছে? ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने पति पत्नी का खून किया है? কিমান এনেকুৱা মানুহ যোনে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকক মাৰি পেলাইছে? ये सब चीजें क्यों हैं? এইবিলাক বস্তু কিয় হয়? क्योंकि उन लोग दुष्ट के वश में हैं। কাৰণ তাহাঁতে দুষ্টজনৰ হাতত আছে। दुष्ट उनको ऐसा बना दिया है, দুষ্টজনে তাহাঁতক এনেকুৱা বনাই দিছে। इसके लिए वो लोग का बश उसमें नहीं चलता, সেইকাৰণে তেওঁৰ ৰাজত্ব নচলে। उनका खुद का बश खुद के ऊपर नहीं चलता। নিজৰ হেৰিটো নিজৰ নতে নচলে। मेरा बस मुझ में नहीं चलता। মোৰ কথা মোৰ লগত নচলে। कथा न है मेरा बस मतलब मैं अपने तरीके से जी नहीं মানে सकता, মই নিজৰ ধৰণেৰে জীয়াব कोई নচলো। और मुझे चलाता है। কোনবা বেলেগে মোক চলায়। तो अगर आप पास्टर की किताब पढ़ोगे तो পাষ্টৰে যদি কিতাপ পঢ়ে वो किताब में एक किताब ऐसा है, हु आर यू हु इज ड्रैगिंग मी? আৰু হু আৰ ইউ হু ইজ ড্ৰেগিং মি বুলি এটা কিতাপ तू আছে। कौन है जो मुझे खींचता है? তুমি কোন হয় যোনে মোক টানি আছা? तू कौन है जो मुझे चलाता है? তুমি কোন হয় যোনে মোক চলোৱা? एक अनदेखा पावर, एक अनदेखा शक्ति जो है हम इंसानों को खींचता है। এটা নেদেখা যোনটো শক্তি
সেইটোৱে মানুহক টানে वो शक्ति उस दुष्ट की शक्ति है। সেই শক্তিটো সেই দুষ্টজনৰ শক্তি तो হয় एक बार हमारे पास चाइना में प्रचार कर रहे थे, এবাৰ আমাৰ পাষ্টৰে চাইনাত প্ৰচাৰ কৰি আছিলে तो एक माँ दौड़ते हुए पास्टर के पास आई। এজনী মাকে দৌৰি পাষ্টৰৰ ওচৰত আহিলে पास्टर पास्टर मेरे बेटे को मदद कर दो। পাষ্টৰ মোৰ ল'ৰাক সহায় কৰি দিয়ক क्या हुआ? কি হ'ল मेरा बेटा जो है टीचर लोगों को मार रहा है। মোৰ ল'ৰাই শিক্ষকসকলক মাৰি আছে तो पास्टर बोल रहे नहीं, आपका बेटा टीचर को नहीं मारता है। নহয় আপোনাৰ ল'ৰাই শিক্ষকক নামাৰে नहीं, वो लेडीज बोलते नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा बेटा मारता है। নাই মই মোৰ চকুৰে চাইছো যে মোৰ ল'ৰাই মাৰে लेकिन पास्टर बोलते नहीं, পাষ্টৰ কয় যে নহয় आपका बेटा नहीं मार रहा है। আপোনাৰ ল'ৰাই মাৰা নাই तो पास्टर ने माँ के सामने बेटे को बुलाया। পাষ্টৰে মাকৰ সন্মুখতে ল'ৰাক तो মাতিলে टीचर को मारना चाहता है? তুমি শিক্ষকক মাৰিব বিচাৰা नहीं पास्टर, নাই পাষ্টৰ नहीं मारना चाहता हूँ। মাৰিব लेकिन নিবিচাৰা तू मारता है? তুমি মাৰা हाँ पास्टर। হয় পাষ্টৰ क्यों? কিয় एक अलग शक्ति तुझे आके मारने को लगाती है, राइट? তোমাক এটা বেলেগ শক্তিয়ে মাৰিবলৈ দিয়ে হয়নে हाँ पास्टर। হয় পাষ্টৰ वो बच्चा तुरंत अपना मन पास्टर के लिए खोल देता है, সেই পাষ্টৰে লগে লগে নিজৰ মন পাষ্টৰ কাৰণে খুলি দিয়ে क्योंकि पास्टर कभी नहीं मानते हैं कि वो बच्चा टीचर को मारता है। কাৰণ সেই পাষ্টৰে একেবাৰে কেতিয়াও নামানে যে সেই বাচ্চাই টিচাৰক মাৰে वो उसके अंदर जो दुष्टात्मा काम कर रहा है, जो शैतान जो काम कर रहा है, वो एक्चुअली टीचर को मारने के लिए विवश करता है उस बच्चे সেই को। দুষ্ট আত্মা যি চৈতানে কাম কৰি আছে সেই ল'ৰাৰ ভিতৰত সেইটোৱে বাধ্য কৰে শিক্ষকক মাৰিব तो ये কাৰণে संसार में हर एक लोगों का मन दुष्ट के वश में होता है। এই পৃথিৱীত সকলো মানুহৰ মন সেই দুষ্টৰ হাতত থাকে शराब नहीं पीना चाहने वाला शराब पिए बिना नहीं रह सकता। মদ খাব নিবিচাৰাজনে মদ নোখোৱাকৈ থাকিব जुआ নোৱাৰে खेलना नहीं चाहने वाला जुआ खेले बिना नहीं रहता। জুৱা খেলিবলৈ নিবিচাৰাজনে জুৱা নেখেলাকৈ व्यभिचार নাথাকে नहीं करने चाहने वाला व्यभिचार किए बिना नहीं रह सकता। বেবিচাৰ কৰিবলৈ নিবিচাৰাজনে নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে सब इंसानों का मन ऐसे खींचा जा रहा है। সকলো মানুহৰ মন এনেকে টান খাই और আছে हर एक इंसान क्या सोचता है? আৰু সকলো মানুহে কি ভাবে हाँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, মই এনেকে কৰিব हाँ, নালাগে मैंने ऐसा नहीं करना মই चाहिए। তেনেকুৱা কৰিব নালাগে अगर बच्चों को देखोगे जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं, আৰু যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক অপমান কৰে মাৰে পিতে वो बच्चे अकेले में क्या करते हैं पता है आपको? সেই বাচ্চা অকলে কি কৰে জানেনে अकेले में बहुत रोते हैं। অকলে বহুত কান্দে अकेले में अपनी माँ को बोलते माँ सॉरी, माँ सॉरी, अकेले में करते हैं। অকলে অকলে মাকক ক্ষমা খুজি থাকে क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था। কাৰণ ময়ো এনেকাই কৰিছিলো जब माँ सामने आती तो गुस्सा आ जाता था, মায়ে ওচৰত আহিলে খং উঠিছিলে माँ को मारता था। মাকক মাৰিছিলো माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मैंने मेरी माँ को भी मारा है। ক্ষমা খুজিছো কিন্তু মই মোৰ মাকো মাৰিছো और अकेले में बहुत रोता था। আৰু অকলে বহুত কান্দিছিলো मैं पागल हूँ क्या? পাগল হয় নেকি क्यों माँ को मारता हूँ? মাক কিয় মাৰো माँ ने क्या बिगाड़ा है मेरा? মায়ে মোৰ কি বেয়া কৰিছে माँ सुबह से शाम तक मेरी सेवा करती है। মায়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ মোৰ সেৱা কৰে लेकिन माँ को मारना आसान रहता है ना? কিন্তু মাকক মাৰিবলৈ সহজ হয় माँ को नफरत करना भी आसान होता है, মাকক বেয়া পোৱাও সহজ হয় क्योंकि पता है ये उल्टा मारने वाली नहीं है। কাৰণ তাই উল্টাই যে নকৰে এইটো अगर জানো वैसा दूसरों को मारूंगा तो वो मुझे पाँव के नीचे तुड़वाएंगे ना। বেলেগক মাৰিলেতো ভৰিতে কচকিব হয় না इसलिए मेरी माँ को जब मैं मारूंगा तो मेरी माँ मुझे उलट के नहीं मारती ना। মোৰ মাক যদি মই পিটো উল্টাইটো নিপিটিব इसलिए बच्चों के अंदर का राक्षस माँ के आगे आसानी से बाहर आता है। মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ যোনটো ভিতৰ ৰাক্ষস মাকৰ ওচৰত সন্মুখীন वो হয় दुष्ट जो है माँ बाप के आगे हमेशा बाहर आता সেই है, দুষ্টতে মাক বাপেকৰ ওচৰত আহি যায় और पति पत्नी के आगे बाहर आता है। আৰু গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ আগত বাহিৰত आपका আহে रूप अगर आप देखना चाहते हो, आप दुष्ट के वश में हो या नहीं, আপুনি দুষ্টৰ হাতত আছে নে নাই সেইটো যদি চাব বিচাৰে अपने माँ बाप के आगे खुद के रूप को देखना, নিজৰ মাক বাপেকৰ আগত নিজৰ ৰূপটো अपने চাওক पति पत्नी के आगे खुद के रूप को देखना, নিজৰ গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ আগত ৰূপটো और চাওক ज्यादा अकेले हो जब अपना रूप देखना, আৰু বেছি যেতিয়া অকলশৰীয়া তেতিয়া চাব वो समय आप देख सकोगे। সেই সময়ত চাব পাৰিব हाँ, एक अंधे की शक्ति मेरे मन में कितना पावर करती है, এনে নেদেখা শক্তি মোৰ মনত কিমান শক্তি কৰে तब आपका मन परमेश्वर के वचन के लिए खुल जाएगा। তেতিয়া আপোনাৰ মন ঈশ্বৰ বাক্যৰ কাৰণে খুলিব क्यों लोग ईश्वर का वचन सुन नहीं सकते? মানুহে কিয় ঈশ্বৰ বাক্য শুনিব নোৱাৰে क्योंकि उनको ईश्वर का जरूरत महसूस नहीं होता। কাৰণ তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দৰকাৰীটো तो নুবুজে जब तक मुझे मेरे ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम नहीं था, যেতিয়ালৈ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিষয়ে গম নাপাইছিলো आपको लगता है मुझे डॉक्टर का जरूरत महसूस होता था? ডক্টৰৰ দৰকাৰীটো অনুভৱ হৈছিল যেন লাগে आपको নে लगता है ब्लड प्रेशर का गोली का नाम क्या है मुझे मालूम है? ব্লাড প্ৰেছাৰৰ দাৱাইৰ নাম কি মই জানো বুলি ভাবিছেনে अभी मुझे सारे कंपनी के नाम भी पता है, ब्लड प्रेशर के दवाइयों के नाम भी पता है, আৰু গোটেই কোম্পানীৰ নামো মোৰ মনত আছে এতিয়া দাৱাইৰ নামো মই জানো लेकिन पहले मुझे ब्लड प्रेशर के गोली का नाम का आता पता कुछ भी नहीं था, কিন্তু আগতে ব্লাড প্ৰেছাৰৰ দাৱাইৰ নাম মই নাজানিছিলো क्योंकि मैं अपनी बीमारी नहीं जानता था। কাৰণ মই মোৰ বেমাৰটো तो নাজানিছিলো जब आप बाइबल के आगे आओगे ना, যেতিয়া বাইবেলৰ আগত আহিব आपकी बीमारी बाइबल प्रकट करेगा, আপোনাৰ বেমাৰ বাইবেলে প্ৰকাশ तो अब आप কৰিব जानोगे कि विश्वास
विश्वास कितना जरूरी है। তেতিয়া গম পাব যে বিশ্বাস কিমান দৰকাৰী। आपको पता चलेगा कि ये संसार पर विजय प्राप्त करना, ये हम अगर हमारे पास विश्वास है तो ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। আৰু এই পৃথিৱীত যদি বিশ্বাস আছে তেতিয়াহে সংসাৰৰ ওপৰত জয়যুক্ত হ'ব পাৰিব। तब आप अपने बच्चों को विश्वास सिखाना शुरू करोगे। তেতিয়া বাচ্চাক বিশ্বাস শিকাব আৰম্ভ और কৰিব। मेरे बच्चे के पास अगर ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, मेरा बच्चा शैतान की गुलामी में जिएगा। মোৰ বাচ্চাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যদি বিশ্বাস নাই শয়তানৰ চাকৰ হৈয়ে জীয়াব। तो आप ईश्वर के पास धन संपत्ति पाने के लिए नहीं दौड़ोगे। ঈশ্বৰৰ আগত ধন সম্পত্তি পাবলৈ धन নদৌৰিব। संपत्ति तो किसी कैसे भी आ जाएगा, ধন সম্পত্তিটো যেনে তেনে আহিব। लेकिन सबसे जरूरी चीज है विश्वास। কিন্তু আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু হ'ল বিশ্বাস। इसके लिए अगर आपके पास विश्वास है तो आप संसार पर जय प्राप्त कर पाओगे। সেইকাৰণে যদি বিশ্বাস আছে পৃথিৱীত জয় হ'ব পাৰিব। कौन से संसार पर? কোনটো সংসাৰত? जिस संसार पर दुष्ट प्रभुत्व करता है। যোনটো সংসাৰত দুষ্টজনে ৰাজত্ব কৰে। सारे संसार दुष्ट ने अपने वश में रखा है। গোটেই সংসাৰখন দুষ্টই নিজৰ হাতত ৰাখিছে। लेकिन बाइबल क्या कहती है? বাইবেলে কি কয়? आइए ध्यान से इस वचन को पढ़िए। ধ্যান দিয়ে বাক্যটো পঢ়ক। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 19 वचन। প্ৰথম যোহনৰ 5:19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। আমি জানো যে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা হওঁ আৰু গোটেই জগত পাপ আত্মাৰ অধীনত থাকে। और 20 वचन में 20 পদ हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। আমি আৰু জানো যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আহিল। हम और एक चीज जानते हैं। আমি আৰু এটা বস্তু জানো। कौन सा चीज जानते हैं? কি বস্তু জানো? हम एंटीवायरस को भी जानते हैं। আমি এন্টিভাইৰাছো জানো। समझ में आया? বুজি পাইছে? मेरे कंप्यूटर में सिर्फ वायरस है तो समस्या है, মোৰ কম্পিউটাৰত অকল যদি ভাইৰাছ আছে তেতিয়া প্ৰব্লেম আছে। लेकिन अगर मैं एंटीवायरस भी जानता हूं तो समस्या वहां से सुलझना शुरू हो जाएगा। কিন্তু এন্টিভাইৰাছো যদি জানো তেনেহলে সমস্যাটো সমাধান হ'ব ধৰিব। तो सिर्फ आप ये जान के काफी नहीं है कि सारा संसार दुष्ट के वश में है। এইখিনি জানিলে যথেষ্ট নহয় যে গোটেই পৃথিৱী এই দুষ্টৰ হাতত আছে। आपने क्या जानना जरूरत है? কি জানাৰ দৰকাৰ? पदोमी सिस्टर क्या जानना जरूरत है? কি জানাৰ দৰকাৰ? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? वायरस को मारने वाला। हाँ, वायरस को मारने वाला। वो दुष्ट को जीतने वाला कौन है? সেই দুষ্টজনক জিকাজন কোন হয়? वो है यीशु मसीह। তেওঁ হ'ল যীশু খ্ৰীষ্ট। तो ये 19 वचन में क्या लिखा है? 20 वचन में 20 পদত কি লিখিছে? हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। আৰু আমি জানো যে ঈশ্বৰ পুত্ৰ আহিল আৰু যিহৰ দ্বাৰা আমি সেই সত্যজনক জানিলো। आप समझ रहे हैं? গম পাইছে? ईश्वर का पुत्र आ गया ঈশ্বৰ পুত্ৰ আহিলে और वो पुत्र हमें समझ देता है। আৰু সেই পুত্ৰই আমাক জানিবলৈ तो দিয়ে। इसलिए वचन में क्या लिखा है? কাৰণে বাক্যত কি লিখিছে? उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। এনে চিত্ৰ আমাক দিলে আৰু আমি সেই সত্য জনাত তেওঁৰ পুত্ৰ যীশু খ্ৰীষ্টত আছো। তেওঁৱে সত্য ঈশ্বৰ আৰু অনন্ত জীৱন। हालांकि हम सब लोग पाप में जन्मे, যদিওবা আমি সকলোৱে পাপত জন্ম হৈছো, हमारे ऊपर पाप ने यानी शैतान ने प्रभुत्व किया, আমাৰ ওপৰত শয়তানে পাপে ৰাজত্ব কৰিছে। इसलिए हमारा जीवन हमने सिर्फ पाप करते हुए जिया। সেইকাৰণে আমাৰ জীৱনত আমি কেৱল পাপ কৰি हमने জীয়ালো। कभी सत्य को नहीं जाना। আমি কেতিয়াও সত্যক लेकिन নাজানিলো। परमेश्वर ने क्या किया? কিন্তু ঈশ্বৰে কি কৰিলে? अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे बीच में भेज दिया। নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যীশুক আমাৰ মাজত और পঠিয়ালে। यीशु आके क्या करता है? আৰু যীশু আহি কি কৰে? हमें सत्य का पहचान करके देता है আমাৰ সত্যটো পৰিচয় কৰাই और দিয়ে। हमें सिखाता है कि यीशु पे विश्वास करके कैसे जीना है। আৰু আমাক শিকায় যে যীশুত বিশ্বাস কৰি কেনেকে तो জীয়াব अगर आप লাগে। यीशु के द्वारा सत्य को जानोगे যদি যীশুৰ যোগেদি সত্যক জানে और आप यीशु के द्वारा विश्वास को सीखोगे, আৰু যীশুৰ যোগেদি যদি বিশ্বাস শিকে, वो विश्वास क्या करेगा? সেই বিশ্বাসে কি কৰিব? संसार पर विजय प्राप्त करेगा। পৃথিৱীক জয়যুক্ত কৰিব। तो अगर आप एक विजयी जीवन जीना है तो, যদি এটা জয়যুক্ত জীৱন জীয়াব आप खुशी বিচাৰে, और शांति का जीवन जीना है तो সুখ আৰু শান্তিৰ যদি জীৱন জীয়াব अपने বিচাৰে, परमेश्वर के पुत्र से सीखने को आना चाहिए, ঈশ্বৰ পুত্ৰৰ পৰা শিকিব জানিব লাগিব। क्योंकि वो पुत्र ही आपको सत्य का ज्ञान देगा। কাৰণ সেই পুত্ৰই সত্যৰ জ্ঞান ये দিব। पुत्र यीशु ही आपको सत्य को जानने देगा সেই পুত্ৰ যীশুৱে সত্যক জানিব দিব और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। আৰু সত্যই স্বতন্ত্ৰ কৰিব। वो सत्य जो है आपको दुष्ट के बंधन से स्वतंत्र कर देगा। সেই সত্য দুষ্টৰ বন্ধনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ কৰিব। तो जब आपके पास आपके मन में यीशु मसीह के द्वारा सच्चा विश्वास आएगा, যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা সত্য বিশ্বাস আহিব, आप इस संसार पर विजय प्राप्त करके जियोगे। এই পৃথিৱীত জয়যুক্ত হৈ জীয়াব। आप डरोगे नहीं, ভয় নাখাব। आप তেতিয়া उसके वश में नहीं रहोगे, তেওঁৰ অধীনত নাথাকিব। आप তেতিয়া दुष्ट के वश में नहीं रहोगे, দুষ্টৰ অধীনতে নাথাকিব। आप তেতিয়া यीशु मसीह के वश में रहोगे। যীশু খ্ৰীষ্টৰ অধীনত থাকিব। आप समझ रहे हैं? বুজিছে? जब आप कंप्यूटर में एंटीवायरस जब इंस्टॉल कर देते हो, কম্পিউটাৰত যেতিয়া এন্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰে, कंप्यूटर वायरस के वश में रहता है कि एंटीवायरस के वश में रहता है? কম্পিউটাৰ ভাইৰাছৰ অধীনত থাকে নে এন্টিভাইৰাছৰ? सर
एंटीवायरस के वश में रहता है। এন্টিভাইৰাছ। अगर सच्ची में आप मसीह में प्रवेश करते हो যদি খ্ৰীষ্টত প্ৰৱেশ কৰে और मसीह आप में प्रवेश करता है, আৰু খ্ৰীষ্টই আপোনাত आप প্ৰৱেশ दुष्ट কৰে, के वश में रहोगे कि मसीह के वश में रहोगे? দুষ্টৰ অধীনত থাকিব নে খ্ৰীষ্টৰ অধীনত থাকিব? आप मसीह के वश में रहोगे। খ্ৰীষ্টৰ অধীনত तो থাকিব। आप पर कौन प्रभुत्व करेगा? আপোনাৰ ওপৰত কোনে ৰাজত্ব आप पर কৰিব? दुष्ट प्रभुत्व करेगा कि मसीह यीशु प्रभुत्व करेगा? দুষ্ট ৰাজত্ব কৰিব নে খ্ৰীষ্ট যীশুৱে ৰাজত্ব तो কৰিব? ये ऐसा नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। আপুনি কি বিচাৰে বা নিবিচাৰে তাৰ একো অৰ্থ নাই। आपने क्या जानना जरूरत है? কি জানাৰ দৰকাৰ? ईश्वर ने मुझे अपना इकलौता बेटा दे दिया है। ঈশ্বৰে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মোক দি हाँ, দিছে। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें भी दिया है। ঈশ্বৰে পুত্ৰ আমাক দিছে। ये पुत्र यीशु हमें सत्य का ज्ञान देता है এই পুত্ৰ যীশু আমাক সত্যৰ জ্ঞান और দিয়ে सत्य हमें स्वतंत्र करता है। আৰু সত্যই আমাক স্বতন্ত্ৰ কৰে। कंप्यूटर वायरस से लड़ाई नहीं करना है, কম্পিউটাৰ ভাইৰাছৰ লগত যুঁজিব নালাগে। कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। কম্পিউটাৰে এন্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰা आप उस দৰকাৰ। दुष्ट से लड़ाई नहीं करना है, আপুনি সেই দুষ্টৰ লগত যুদ্ধ কৰিব নালাগে। आपने यीशु मसीह को ग्रहण करना है, আপুনি যীশু খ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰা अपने দৰকাৰ। यीशु को विश्वास करना है, আপুনি যীশুক বিশ্বাস কৰা आपने দৰকাৰ। अपना मन यीशु के लिए खोलना है। আপুনি আপোনাৰ মন যীশুৰ কাৰণে খোলা यीशु দৰকাৰ। आपके मन में आएगा, যীশু আপোনাৰ মনত আহিব। यीशु आपको पाप की शक्ति से स्वतंत्र कर देगा, যীশুৱে আপোনাক পাপৰ শক্তিৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ यीशु কৰিব। आपको पाप क्षमा का ठीक ठीक विश्वास दे देगा, যীশুৱে আপোনাক পাপ ক্ষমাৰ ঠিক বিশ্বাস দিব। आपका मन पाप की शक्ति से स्वतंत्र हो जाएगा আপোনাৰ মান পাপৰ শক্তিৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হ'ব। और आप उस यीशु पर विश्वास करके जो जियोगे वो विश्वास का जीवन, वो जयवंत जीवन है। আৰু যীশুত বিশ্বাস কৰি জীয়া জীৱনটো জয়যুক্ত জীৱন হয়। इसलिए बाइबल में लिखा है मसीह हमें जयवंत से भी बढ़कर जीवन की ओर अगुवाई करता है। সেইকাৰণে বাইবেল লিখিছে যে খ্ৰীষ্টই আমাক জয়যুক্ত জীৱনৰ ফালে চলায়। तो मसीह हमें ऐसे अगुवाई करता है। খ্ৰীষ্টই আমাক এনেকে চলায়। लेकिन अगर आपके मन में मसीह के लिए जगह नहीं है, কিন্তু আপোনাৰ হৃদয়ত যদি খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে জেগা নাই, अगर आपके मन में वचन के लिए जगह नहीं है, হৃদয়ত যদি বাক্যৰ কাৰণে জেগা নাই, खाली आप बोलोगे मैं चर्च गया था क्या फायदा, ऐसा बोलोगे फिर খালি ক'ব যে গীৰ্জাত গৈছিলো কি লাভ, चर्च जाके क्या मिलता है, গীৰ্জাত গৈ কি পাও, चर्च जाके क्या फायदा। গীৰ্জাত গৈ কি লাভ। अब पास्टर तो वही वचन प्रचार करता है, পাষ্টৰেটো সেই একেটা বাক্যই প্ৰচাৰ কৰে। हमेशा पाप क्षमा हो गया बोलता है। সদায় পাপ ক্ষমা হৈছে বুলি आपको কয়। पता नहीं है पाप क्षमा क्या है। পাপ ক্ষমা কি হয় গম अगर নাপায়। आप जानते पाप क्षमा के बारे में ठीक रीति পাপ से, ক্ষমাৰ বিষয়ে যদি ঠিক ৰূপে आप জানে, कभी ऐसा नहीं बोलते हमेशा पास्टर वही प्रचार करता है बोल के, এনেকে নকব যে পাষ্টৰে সদায় সেইটোৱে প্ৰচাৰ কৰে। क्योंकि आपको सच्ची में पाप और परमेश्वर के बारे में ये डिफरेंसेस अच्छा से पता नहीं है। কাৰণ পাপ আৰু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে পাৰ্থক্যটো ভালদৰে নাজানে। इसलिए हमारा मन शुरू से ही सही रीति से गाइडेंस पाना है। সেইকাৰণে আমাৰ মনটো আৰম্ভণিৰ পৰাই ঠিক গাইডেন্স तो ये পোৱা जो बाइबल দৰকাৰ। में जो वचन लिखे हैं ना, বাইবেলত যে বাক্য লিখিছে, ये बाइबल के वचन बहुत ही अलग अलग ऑर्डर से लिखे जैसा लगता है। এনেকুৱা লাগে বহুত বেলেগ বেলেগ অৰ্ডাৰেদি লিখিছে। तो बाइबल जब परमेश्वर हमें देते हैं, যেতিয়া বাইবেলটো ঈশ্বৰে আমাক দিয়ে, एक एग्जैक्ट उद्देश्य से दिए हुए हैं। এটা সঠিক উদ্দেশ্য দি পেলাই দিছে। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। মোৰ কথা ধ্যান দি শুনিব। उदाहरण के लिए, ফৰ এক্সাম্পল, ये उदाहरण है, ठीक है, এক্সাম্পল দিছো। उदाहरण है। এক্সাম্পল मैं जा হয়, रहा नहीं हूँ नेपाल, ओके, মই যোৱা নাই নেপাল। उदाहरण दे रहा हूँ। এক্সাম্পল দিছো। सपोज अभी मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, সাপোজ মোৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, मैं नेपाल चला गया মই নেপাল গুচি গ'লো और नेपाल में जाके मैंने काठमांडू कलिसिया या पोखरा कलिसिया में मैंने सुसमाचार का काम करना शुरू किया আৰু কাঠমাণ্ডু বা পোখৰা ঠাইত মই শুভবাৰ্তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো। और वहाँ पे मेरे बच्चों के साथ में रह रहा हूँ, चर्च बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं আৰু তাতে মোৰ বাচ্চাৰ লগত গৈ থাকিছো, গীৰ্জা বনাইছো, চব কাম কৰিছো। और ऐसे ही करके 10 साल बीत गए। এনেকে কৈ 10 বছৰ तो গ'লগে। 10 साल के बाद मैं गुवाहाटी चर्च को एक लेटर लिख रहा हूँ। 10 বছৰ পাছত মই গুৱাহাটী গীৰ্জাৰ এটা পত্ৰ লিখিছো। गुवाहाटी चर्च के भाई बहन आप सबको मसीह यीशु में सलाम। গুৱাহাটী গীৰ্জাৰ ভাই ভনী খ্ৰীষ্ট যীশুত নমস্কাৰ। आप सबको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। আপোনালোক সকলোৱে যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা অনুগ্ৰহ আৰু শান্তি পাওক। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा से आत्मिक जीवन जी रहे होंगे। আশা কৰিছো ভালদৰে আত্মিক জীৱন জীয়াই আছে। मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने गुवाहाटी चर्च में जमीन भी ले लिया होगा। আশা কৰিছো যে গুৱাহাটী গীৰ্জাৰ এতিয়া মাটি লৈ तो লৈছে। हम नेपाल में भी बहुत सुंदर रीति से सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। নেপালতো আমি ধুনীয়াকে শুভবাৰ্তা प्रचार কৰি हमने আছো। नेपाल चर्च में जमीन भी ले लिया। আমি নেপাল গীৰ্জাৰ মাটিও ললো। हमने बड़ा IYF सेंटर भी खोला है। আমি ডাঙৰ IYF চেণ্টাৰ খুলিছো। अभी नेपाल के बहुत सारे युवा परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं নেপাল বহুত যুৱক যুৱতী ঈশ্বৰ বাক্য और শিকি हम আছে। उनको मिशनरी बोल के दूसरे देश में भी भेज रहे हैं प्रचार करने के আৰু लिए। প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি তাহাঁতক বেলেগ দেশতো পঠাই हम আছো। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने कलीसिया को आशीष दिया है। ধন্যবাদ দিছো ঈশ্বৰক যোনে গীৰ্জাৰ আশীৰ্বাদ কৰিছে। तो आने वाले 15 तारीख को আহিবলগীয়া 15 তাৰিখে मेरी बेटी लेआ का शादी है। মোৰ ছোৱালী লেয়াৰ বিয়া আছে। आप सबके लिए मैं आपको फ्लाइट टिकट भेज रहा हूँ। আপোনালোক সকলোকে মই ফ্লাইট টিকেট পঠিয়াইছো। आप दया करके आप सभी
लोग मेरी बेटी के शादी में आना দয়া কৰি মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াত আহিব और आके मेरी बेटी को आप आशीष देके जाना। আৰু আহি মোৰ ছোৱালীক আশীৰ্বাদ দি যাব। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मैं शादी में देख पाऊँ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোকে মই বিয়াত চাব পাৰিম। तो इतना बड़ा लेटर लेके मैंने आपको भेज दिया ইমান ডাঙৰ লেটাৰ লিখি মই আপোনাক পঠালো और उसके साथ मैंने टिकट भी भेज दिया। তাৰ লগত মই টিকেটো পঠালো। तो लेटर गुवाहाटी चर्च के पास्टर के पास आया আৰু গুৱাহাটী গীৰ্জা পাষ্টৰৰ ওচৰত লেটাৰ और আহিল वो पास्टर आपके लिए लेटर पढ़ रहे हैं। আৰু সেই পাষ্টৰ আপোনাৰ কাৰণে লেটাৰ পঢ়ি हाँ, আছে। पास्टर विजय ने लेटर भेजा है आप लोग के लिए। পাষ্টৰ বিজয় আপোনাৰ কাৰণে লেটাৰ পঠাইছে। क्या ब्लड प्रेशर होते हुए भी अभी तक जिंदा है? কি ব্লাড প্ৰেছাৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়ালৈ জীয়াই আছে? अभी भी लेटर भेजने की ताकत में है? এতিয়াও লেটাৰ পঠোৱাৰ শক্তি আছে? क्या लिखा है पास्टर ने, बताइए बताइए। ঠিক আছে কওকচোন কি লিখিছে? तो आपने लेटर को सुनना शुरू किया। লেটাৰটো শুনা আৰম্ভ কৰিলে। पूरा लेटर पढ़ के सुनाया गया গোটেই লেটাৰটো পঢ়াই শুনালে। और आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। এতিয়া আপুনি কথা পাতিছে। अरे नेपाल चर्च बहुत बड़ा हो गया। নেপাল চাৰ্চ বহুত ডাঙৰ হ'ল। वहाँ सुना है खुद का जमीन ले लिया। শুনিছো যে নিজৰ মাটিও ললে। हाँ, सुना है वहाँ पे लोग मिशनरी बन के जा रहे हैं। শুনিছো যে মানুহ মিশনাৰী হৈ গৈ আছে। आप लोग बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हो। ইটো সিটো কথা বহুত পাতিছে। लेकिन কিন্তু मेरी बेटी की शादी के दिन में মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ দিনা कोई भी नहीं आया। কোনো নাহিল। क्यों? কিয়? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया लेटर लिखा ही क्यों था। কাৰণ বুজিয়ে পোৱা নাই যে লেটাৰটো লিখিছে কিয়। क्या मैं आपको ये बताने के लिए लेटर लिखा था कि नेपाल चर्च बड़ा हो गया? মই এইটো লিখিছিলো নেকি যে নেপাল গীৰ্জা ডাঙৰ হৈছে এইটো ক'ব বিচাৰিছো? ये बताने के लिए मैंने लेटर लिखा था कि वहाँ के लोग मिशनरी जाते हैं? তাতে মানুহবিলাকে মিশনাৰীত যায় সেইটো ক'ব কাৰণে লেটাৰটো লিখিছিলো। हाँ, वो भी लिखा है लेटर में। লেটাৰটো সেইখিনি লিখিছো। वो भी लिखा है। লিখা আছে। लेकिन वो लिखने के लिए लेटर नहीं लिखा है। কিন্তু সেইটো লিখিবলৈ লেটাৰটো লিখা নাই। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? বুজি পাইছেনে? क्योंकि मैं सिर्फ इतना नहीं लिख सकता मेरी बेटी की शादी में आओ बोल के। মই অকল এনেকেতো লিখিব নোৱাৰি যে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াত আহি যোৱা इसके বুলি। लिए मैंने लेटर को अच्छे से सजाया है। সেইকাৰণে লেটাৰটো মই ধুনীয়াকে आप সজাইছো। सबको ग्रीट किया हूँ, আপোনালোকক মই গ্ৰীট आप सबको কৰিছো। याद करता हूँ बोला हूँ, মনত কৰিছো বুলি কৈছো। और नेपाल में क्या क्या चल रहा है वो भी बता रहा हूँ। নেপালত কি হৈছে এইটোও लेकिन কৈছো। लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है? লেটাৰ লিখাৰ উদ্দেশ্য কি? मेरी बेटी की शादी में आके उसे आशीष दो, ये मेरा उद्देश्य है। মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াত আহি তাইক আশীৰ্বাদ দিয়া এইটোৱে উদ্দেশ্য হয়। आपने सब कुछ सुना আপোনালোকে সকলো শুনিলে और आपस में बहुत बातचीत किया। আৰু বহুত কথা পাতিলে। मेरी बेटी की शादी के दिन में कोई भी नहीं आया। কিন্তু মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ দিনা কোনো নাহিল। ऐसा होने वाला है स्वर्ग के राज्य में। স্বৰ্গৰ ৰাজ্যত এনেকে হ'ব। बहुत सारे लोग यीशु का बात करते हैं, বহুত মানুহে যীশুৰ কথা পাতে। बहुत सारे लोग क्रूस की बात करते हैं, বহুত মানুহে ক্ৰুচৰ কথা পাতে। बहुत सारे लोग बपतिस्मा येन तेन दुनिया भर की बातें करते हैं। বহুত মানে বাপ্তিস্ম হেন তেন দুনিয়াবোৰ কথা हम পাতে। चर्च जाते हैं, আমি हम খ্ৰীষ্টা যাওঁ, मिशनरी মিশনাৰী হয়, हैं, हम पास्टर हैं, পাষ্টাৰ हम হয়, एल्डर हैं। এল্ডাৰ হয়। मैं 20 साल से चर्च जाता हूँ। 20 বছৰ পৰা वो গীৰ্জা चर्च যাওঁ। जो खड़ा है ना, चर्च जो जमीन में खड़ा, मेरा जमीन है, मेरा। যি গীৰ্জাত থিয় হৈ আছে সেইটো মোৰ মাটি হয়। ऐसे लोग बातें करते हैं। মানুহে এনেকে কথা পাতে। लेकिन अगर उनको पूछोगे কিন্তু যদি সোধে यीशु मसीह आज आएगा तो लेके जाएगा क्या आपको? যীশু খ্ৰীষ্ট যদি আহে তোমাক লৈ যাবনে? वो तो परमेश्वर ही जानता है। ঈশ্বৰে জানে সেইটো। तो तुम क्या जानता है? তুমি কি জানা? तुम तो कुछ नहीं जानता है। তুমিতো একো নাজানা। तुमको नरक में जाने के बाद पता चलेगा तुम नरक में आ गया, कितना अच्छा है ना तुम्हारे लिए। নৰকত যোৱাৰ পাছত গম পাব যে নৰকত আহিলো কিমান ভাল ন তোমাৰ কাৰণে। अगर लोगों को पूछोगे মানুহক যদি সোধে आपका नया जन्म हुआ है, আপোনাৰ নতুন জন্ম হৈছে, नया जन्म क्या है? নতুন জন্ম কি হয়, आपने उद्धार पाया है? আপুনি উদ্ধাৰ পাইছে, उद्धार क्या है? উদ্ধাৰ কি হয়? आज लोगों का दशा ऐसा है। মানুহৰ অৱস্থা এনেকুৱা আজি। अगर आज आप मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे? আজি আপুনি মৰিলে স্বৰ্গত যাব নে নৰকত যাব? क्या बोलते हैं? কি কয়? वो न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है। সেই ন্যায় কৰাটো ঈশ্বৰৰ হাতত আছে। हमने अपना न्याय नहीं करना আমি चाहिए। নিজৰ ন্যায় কৰিব নালাগে। हम कैसे खुद का न्याय कर सकते हैं? আমি নিজৰ ন্যায় কেনেকে কৰিব क्या পাৰো? मैं बोल दूंगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो चला जाऊंगा? মই স্বৰ্গত যাম বুলি ক'লে মই গুচি যাম নেকি? क्या मैं नरक में जाऊंगा बोलूंगा तो क्या मैं नरक में जाऊंगा? মই নৰকত যাম বুলি ক'লে মই নৰক যাম নেকি? वो तो जाने के बाद पता चलेगा। যোৱাৰ পাছতহে গম পাম। जाने के बाद आप नरक में पहुंचने के बाद आपको पता चल गया आप नरक में पहुंच गए, ये कितनी बुरी बात है ना। গম পোৱাৰ পাছত বোলে নৰকত গৈ পালে কিমান বেয়া কথা হ'ব। अगर जाने के बाद ही पता चलना है तो যোৱাৰ পাছতে যদি গম পাব লাগে ये बाइबल परमेश्वर ने हमको क्यों दिया? তেনেহ'লে বাইবেলটো ঈশ্বৰে আমাক দিছে কিয়? बाइबल देने का जरूरत ही नहीं है। বাইবেল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিল। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता था যেতিয়া মই বাইবেল পঢ়িছিলো ऐसे बहुत सवाल मेरे मन में उत्पन्न होते थे। মোৰ হৃদয়ত বহুত প্ৰশ্ন উৎপন্ন হৈছিল। नया जन्म क्यों पाना है स्वर्ग में जाने के लिए? স্বৰ্গত যাবলৈ নতুন জন্ম কিয় পাব লাগে? इसका क्या मतलब है? তাৰ মানে কি? आत्मा से जन्म लेना, पानी से जन्म लेना, इसका मतलब क्या है? আত্মাৰে জন্ম লোৱা, পানীৰে জন্ম লোৱা, ইয়াৰ মানে কি? वो मत्ती के 22 अध्याय में वो राजा आता है, बोलता है मित्र
विवाह के वस्त्र बिना तू यहाँ क्यों आ गया, जा तू अंधकार में, क्यों बोल रहा है? আৰু মঠিৰ 22 সেই ৰজাই কিয় আহি পেলাই কৈ আছে যে বিবাহৰ বস্ত্ৰ নথকাকৈ তুমি কিয় আহিছা, যোৱা तो ये অন্ধকাৰ। विवाह का वस्त्र क्या है? এই বিবাহৰ বস্ত্ৰ কি হয়? क्या मैंने विवाह के वस्त्र पहने हैं? মই বিবাহৰ বস্ত্ৰ পিন্ধিছো নেকি? ऐसे बहुत सवाल मेरे मन में होते थे, এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন মোৰ মনত আহিছিল, विशेष करके जब मैं पुराना नियम पढ़ता था, বিশেষকৈ যেতিয়া মই পুৰণা নিয়ম পঢ়িছিলো, नया नियम पढ़ता था। নতুন নিয়ম যেতিয়া পঢ়িছিলো, तो नया नियम में ऐसे लिखा है, तू अगर अपने भाई को मूर्ख बोलेगा तो तू नरक अग्नि में जाएगा। নতুন নিয়মত এনেকে কয় যে তুমি তোমাৰ ভাইক মূৰ্খ বুলি ক'লে তুমি অগ্নিত যাবা। तो मुझे तो उठा सुठा गुस्सा आता है, মোৰতো এই যাহা তাহাকে গুচ্ছা খং আহে। भाई को क्या, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ू मूर्ख बोलने के लिए, जिसको मन में आए उसको मूर्ख बोल देता हूँ। ভাই কি মই যাকে তাকে খং উঠিলে মূৰ্খ বুলি কৈ দিওঁ, सही है ना? হয়নে? फिर वचन के अनुसार क्या है फिर वो? তেনেহলে বাক্য অনুসাৰে এইটো কি হয়? फिर मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? মই কেনেকৈ স্বৰ্গত যাব तो পাৰো? बाइबल के एक एक वचन हमारे मन से लड़ाई करते हैं। আৰু বাইবেলৰ এটা এটা বাক্য আমাৰ মনৰ লগত যুদ্ধ কৰে। अगर परमेश्वर का वचन सच में आपके मन में नहीं टकराता तो ঈশ্বৰৰ বাক্য যদি আপোনাৰ মনত খুন্দা নাখায়, अगर आप चर्च में भी आओगे ना, গীৰ্জাটো যদি আহে, क्या पास्टर ने प्रचार किया, कोई चीज आपके मन से रिलेटेड होगा ही नहीं। পাষ্টৰে কি প্ৰচাৰ কৰিছে একো বস্তু মনৰ লগত জড়িতই নহব। हमारे पल्लव भाई के पापा यहाँ बहुत समय से आते हैं, আমাৰ পাল্লৱ ভাইৰ দেউতা বহুত দীঘলীয়া সময় ইয়াতে আহে। ईमानदारी से 1.5 घंटा 2 घंटा में जितना प्रचार करूं उतना बैठते हैं, মই যিমান দেৰি প্ৰচাৰ কৰো 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ভালদৰে বহি শুনে, लेकिन आज तक मैं एक ऐसा वचन नहीं सुन पाया हूं जो उनके मन में से निकल आया हो। কিন্তু তেওঁৰ মনৰ পৰা ওলোৱা এটা বাক্য আজিলৈ মই শুনা নাই। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों का दशा ऐसा ही है, মোৰ লাগিছে বেছিভাগৰ অৱস্থা এনেকুৱাই হয়। किए हुए प्रचार का जो वचन है मन से रिलेटेड होता ही नहीं है, যি প্ৰচাৰ কৰো সেইটো মনৰ লগত জড়িত নহয়, मन रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। মনটো ৰিফ্লেক্ট নহয়। क्यों? কিয়? कभी भी कनेक्ट हुआ ही नहीं मन। কেতিয়াও মনটো জড়িতই হোৱা নাই। जब हम वचन से मन नहीं जुड़ता है ना, যেতিয়া বাক্যৰে মন নুজুৰে, कितना भी अच्छा प्रचार सुनो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। যিমান ভাল প্ৰচাৰ নুশুনক কিয় একো লাভ নাই। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ, সেইকাৰণে মই কি ক'ব বিচাৰো, आओ हम हमारे आत्मा की बीमारी को जाने। বলক আমি আমাৰ আত্মাৰ বেমাৰটো যাতে জানো। एक बार तो भी आप अपना मन खोलो। এবাৰটো মনটো খোলক। अगर आप सच्ची में अपना मन खोलोगे, সঁচাকে যদি নিজৰ মন খোলে, प्रभु का वचन आपके मन में आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। প্ৰভুৰ বাক্য আপোনাৰ মনত ৰিফ্লেক্ট হোৱা আৰম্ভ अभी হ'ব। जैसे मैंने आपको मेरे ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, যেনেকে মই মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বিষয়ে हालांकि কৈছো, मेरे पास्टर ने कहा तुझे ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स है, तू डॉक्टर के पास जा, उन्होंने ऐसा बोला। যদিওবা পাষ্টৰে কৈছে যে তোমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ চিন আছে তুমি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা, अगर मैं जाता ही नहीं डॉक्टर के पास तो মই যদি ডাক্তৰৰ ওচৰত নগলোৱে হয়, डॉक्टर मेरा चेकअप करेगा ही नहीं, ডক্তৰে মোৰ চেকআপে নকৰিব, वो मुझे मेरा समस्या बताएगा ही नहीं, তেওঁ মোৰ সমস্যাই নকব, मुझे मेरा समस्या समझ में नहीं आएगा, মই মোৰ সমস্যা বুজিয়ে নাপাম, मैं इलाज कभी कर ही नहीं सकता। মই চিকিৎসা কেতিয়াও কৰিবই নোৱাৰো। इलाज का शुरुआत कहाँ से है? बीमारी का पहचान से है। বেমাৰটো চিনি পোৱাৰ পৰাহে চিকিৎসা আৰম্ভণি হয়, सही है? হয়নে? तो सबसे पहले हमने क्या जानने की जरूरत है? প্ৰথমতে আমি কি জনাৰ দৰকাৰ? पाप के बारे में जानने की जरूरत है। পাপৰ বিষয়ে জনাৰ দৰকাৰ। हम सब पाप में जन्मे हैं আমি সকলোৱে পাপত জন্মিছো, और पाप में जन्मने के कारण हम सब ने पाप किया है। পাপত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে পাপ কৰিছো। तो ये संसार हमको क्या सिखाता है? এই পৃথিৱীয়ে আমাক কি শিকায়? पाप नहीं करोगे तो स्वर्ग जाओगे। পাপ নকৰিলে স্বৰ্গত যাবা, सही है? হয়নে? संसार क्या सिखाता है? পৃথিৱীয়ে কি শিকায়? अच्छा करोगे तुमको अच्छा मिलेगा, ভাল কৰিলে ভাল পাবা, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, বেয়া কৰিলে বেয়া পাবা, पाप नहीं करोगे स्वर्ग मिलेगा, পাপ নকৰিলে স্বৰ্গ পাবা, पाप करोगे नरक में जाओगे। পাপ কৰিলে নৰকত যাবা। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? বাইবেলে আমাক কি শিকায়? सबने पाप किया है बोल के सिखाता है। সকলোৱে পাপ কৰিছে বুলি শিকায়। क्या आपने कभी सीखा है ये बात को? এই কথাটো শিকিছেনে কেতিয়াবা? मैं पाप में जन्मा हूँ ये बात सीखा है मन से? পাপত জন্ম হৈছে এই কথাটো মনেৰে শিকিছেনে क्या কেতিয়াবা? आपने यीशु मसीह से ये शिक्षा पाया है कि आप पाप में जन्मे हो? যীশুখ্ৰীষ্টৰ পৰা শিক্ষাটো পাইছেনে যে আপুনি পাপত জন্মিছে? तो यीशु मसीह हमको क्या शिक्षा देते हैं? যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক কি শিক্ষা দিয়ে? परमेश्वर हमको क्या शिक्षा देते हैं? ঈশ্বৰে আমাক কি শিক্ষা দিয়ে? सबने पाप किया है ये शिक्षा देते हैं। সকলোৱে পাপ কৰিছে এইটো हम শিক্ষা सब দিয়ে। पाप में जन्मे हैं आदम के द्वारा। আদামৰ যোগেদি আমি সকলোৱে পাপত জন্মিছো। इसके लिए हम पाप करना चाहें या ना चाहें हम पाप करते हैं। সেইকাৰণে পাপ কৰিবলৈ বিচাৰো বা নিবিচাৰো পাপে কৰো। यहाँ कोई है क्या जिसने पाप नहीं किया है? ইয়াতে কোনোবা আছে নেকি যোনে পাপ কৰা নাই? पल्लव के पिताजी পল্লৱৰ দেউতা पाप किया नहीं किया? পাপ কৰিছেনে নাই? थोड़ा शर्म का बात है ना। অলপ লাজৰ কথা হয়। लोग पाप के बारे में स्पष्ट बोलना नहीं चाहते हैं, মানুহে পাপৰ বিষয়ে স্পষ্টৰূপে ক'ব নিবিচাৰে। क्योंकि पाप के बारे में बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना।
কাৰণ পাপৰ বিষয়ে ক'বলৈ ইমান ভাল নালাগে कभी कभी मैं जब प्रचार करता हूँ, কেতিয়াবা যেতিয়া মই প্ৰচাৰ কৰো मैंने कितना चोरी किया, व्यभिचार किया, दुष्टता किया, शराब पिया, जुआ खेला, सब मैं बताता हूँ। মই কিমান চুৰ ব্যভিচাৰ দুষ্টতা জুৱা মদ এইবিলাক চব মই কৈ দিওঁ तो कुछ लोग आके मुझे क्या बोलते हैं, কিছুমান মানুহ আহি মোক কি কয় इतना ज्यादा पाप के बारे में बोलना जरूरी है क्या? ইমান বেছি পাপৰ বিষয়ে কোৱাটো দৰকাৰী নেকি क्योंकि उनको पाप के बारे में सुनने को भी लज्जा लगता है, আৰু পাপৰ বিষয়ে শুনিবলৈও লাজ লাগে लेकिन पाप नहीं किया ऐसा कोई है क्या? কিন্তু পাপ নকৰা কোনোবা আছে নেকি कोई नहीं है। কোনোৱে নাই हालांकि लोगों ने पाप किया है, যদিওবা মানুহে পাপ কৰিছে लेकिन नरक का डर नहीं है। নৰকৰ ভয় নাই इसके लिए पाप क्षमा की तरफ मन नहीं जाता। সেইটো কাৰণে মনটো পাপ ক্ষমাৰ ফালে নাযায় कौन पाप क्षमा पा सकता है? কোনে পাপৰ ক্ষমা পাব পাৰে जो इंसान सटीकता से जानेगा कि मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं निश्चित नरक में जाऊंगा। যোন মানুহে সঠিক ৰূপে জানিব যে মই এনেকুৱা পাপ কৰিছো যাৰ কাৰণে নিশ্চিত মই নৰকত যাম मैंने पाप किया है, মই পাপ কৰিছো मैं पाप में जन्मा हूँ, মই পাপত জন্ম হৈছো मेरे लिए नरक निश्चित है। মোৰ কাৰণে নৰক নিশ্চিত হয় वही इंसान के हृदय में नरक का भय प्रवेश होता है। সেই মানুহৰ মনতে নৰকৰ ভয় সোমায় तब क्या होता है? তেতিয়া কি হয় क्या ये पाप से बचने का कोई रास्ता है? এই পাপৰ পৰা বাচিবলৈ কিবা ৰাস্তা আছে নে क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? মোৰ পাপ ক্ষমা হ'ব পাৰে নে क्षमा हो सकते हैं? ক্ষমা হ'ব পাৰে নে कौन मेरे पाप का मुझे क्षमा देगा? কোনে মোক পাপৰ ক্ষমা দিব क्या मुझे बनाने वाले ईश्वर ने मेरे पाप की क्षमा के लिए कोई रास्ता बनाया है? মোক ঈশ্বৰে কিবা পাপৰ ক্ষমা ৰাস্তা বনাইছে নে क्या ये संसार में कोई है जो पाप क्षमा सिखाता है? এই পৃথিৱীত কোনোবা আছে নে যোনে পাপৰ ক্ষমা শিকায় क्या किए हुए पाप क्षमा किए जाते हैं? কৰা পাপ ক্ষমা হ'ব পাৰে নে तो पाप क्षमा के बारे में सिर्फ बाइबल बताता है। পাপ ক্ষমাৰ বিষয়ে কেৱল বাইবেলে কয় तो बाइबल क्या कहता है? বাইবেলে কি কয় पाप की सजा मौत है পাপৰ বেজ মৃত্যু হয় और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं আৰু होती। তেজ নোবোৱালে পাপৰ মোচন নহয় तो बाइबल हमको प्रिसाइसली क्या बताता है? বাইবেলে আমাক সঠিক ৰূপে কি কয় हमारे पाप क्षमा हो जाएं, इसके लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। আমাৰ পাপ যাতে ক্ষমা হয় কাৰণে ঈশ্বৰ পুত্ৰই পৃথিৱীত আহিল इसके लिए उसका नाम यीशु रखा गया। সেই কাৰণে তেওঁৰ নাম যীশু থৈছে उसका नाम तुम यीशु रखो क्योंकि यही अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা কাৰণ তেওঁৱে নিজৰ মানুহক পাপৰ পৰা বচাব तो यीशु ये संसार में आके যীশুৱে পৃথিৱীত আহি हमारा जन्मदिन से लेके मरने दिन तक का सारा पाप अपने ऊपर उठाया। আমাৰ জন্মদিনৰ পৰা মৰা দিনলৈ গোটেই পাপ উঠালে ये संसार का पहला मनुष्य आदम से लेकर के आखिरी मनुष्य तक के सारे पाप उसने अपने ऊपर उठाया এই প্ৰথম মানুহ আদামৰ পৰা অন্তিম মানুহলৈ গোটেই পাপ তেওঁ নিজৰ ওপৰত উঠালে और वो पाप की सजा मौत वो खुद क्रूस पे मर के चुकाया আৰু পাপৰ বেজ মৃত্যু নিজে ক্ৰুচত মৰি দিলে और क्रूस के लहू से उसने हमारे सारे पाप धो दिए। আৰু ক্ৰুচৰ তেজেৰে তেওঁ আমাৰ গোটেই পাপ ধুই দিলে ये ज्ञान है जो पुत्र यीशु हमें देता है। এইটো জ্ঞান হয় যি পুত্ৰ যীশুৱে আমাক দিয়ে तो सत्य का ज्ञान कौन हमको देता है? সত্যৰ জ্ঞান কোনে আমাক দিয়ে परमेश्वर के द्वारा भेजा गया पुत्र यीशु हमें सत्य का ज्ञान देता है। ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা পঠোৱা যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক সত্যৰ জ্ঞান দিয়ে तो यीशु क्या हमें ज्ञान देता है? যীশু আমাক কি জ্ঞান দিয়ে हाँ, तुम पाप में जन्मे, তুমি পাপত জন্মিছা हाँ तुमने पाप किया, তুমি পাপ কৰিছা ये पाप के कारण तुम्हें नरक जाना निश्चित था। পাপৰ কাৰণে তুমি নৰকলৈ যোৱা নিশ্চিত আছিল इसके लिए पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा। সেইকাৰণে পিতা ঈশ্বৰে মোক तो পঠিয়াইছে मैं ये दुनिया में आया यीशु नाम से तुम्हारा उद्धार करने के लिए, যীশু নামেৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মই পৃথিৱীত আহিছো और तुम्हारे पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए আৰু তোমাৰ পাপ মই নিজৰ ওপৰত ললো और मैंने तुम्हारे पाप को क्रूस पे खत्म कर दिया। আৰু মই তোমাৰ পাপ ক্ৰুচত খতম কৰি দিলো क्रूस पे बहे हुए लहू से मैंने तुम्हारे पाप धो दिए। ক্ৰুচৰ পোৱা তেজেৰে মই তোমাৰ পাপ ধুই দিছো ये यीशु मसीह ज्ञान देना चाहते हैं। যীশু খ্ৰীষ্ট এইটো জ্ঞান দিব বিচাৰে अब तुम पापी नहीं हो, এতিয়া তুমি পাপী নহয় अभी तुम धर्मी हो, এতিয়া তুমি ধাৰ্মিক হয় अभी तुम पवित्र हो, এতিয়া তুমি পবিত্ৰ হয় तुम्हारे पाप की क्षमा हो चुकी है। তোমাৰ পাপৰ ক্ষমা হৈ গৈছে तो हम स्वर्ग कैसे जा रहे हैं? আমি কেনেকে স্বৰ্গত গৈ हम আছো पाप नहीं करते इसके लिए स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। আমি পাপ নকৰাৰ কাৰণে যে স্বৰ্গত যাওঁ তেনেকা हम নহয় विश्वास करते हैं कि हमारे सारे पाप यीशु के लहू में धुल गए, इसलिए हम स्वर्ग जा रहे हैं। আমি বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ গোটেই পাপ যীশুৰ তেজেৰে ধুইছে সেইকাৰণে আমি স্বৰ্গত যাওঁ ये ज्ञान यीशु हमें देना चाहता है। সেই জ্ঞানটো যীশুৱে আমাক দিব বিচাৰে इसको बाइबल में अनंत काल का छुटकारा बोला गया है, সেইটোক বাইবেল অনন্ত কালৰ মুক্তি বুলি কৈছে इटर्नल रिडेम्पशन। অনন্ত মুক্তি इन इटर्नल रिडेम्पशन অনন্ত কালৰ মুক্তি मेरे अनंत काल के पाप मिटाए जा चुके हैं, মোৰ অনন্ত কালৰ পাপ ধোৱা হৈছে मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। মোৰ গোটেই পাপ ক্ষমা হৈ গৈছে ये विश्वास कौन हमें देता है? এই বিশ্বাসটো আমাক কোনে দিয়ে पुत्र यीशु हमें ये विश्वास देता है। পুত্ৰ যীশুৱে আমাক এই বিশ্বাস जब দিয়ে। हमारे मन में ये विश्वास आता है, আমাৰ মনত যেতিয়া বিশ্বাস আহে हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं, আমি এই সংসাৰত জয়যুক্ত हम হওঁ उस शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। আমি সেই শয়তানৰ ওপৰত জয় হওঁ तो शैतान पर जय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कौन है? শয়তানৰ ওপৰত জয়যুক্ত হোৱা ব্যক্তি কোন वो হয় व्यक्ति जो बोलता है मेरे अनंत काल के पाप क्षमा हो गए
गए, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, आज मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये आदमी शैतान पर विजय पाया हुआ आदमी है। যি মানুহে ক'ব পাৰে যে মই পবিত্ৰ ধাৰ্মিক হয়, মই আজি মৰিলে স্বৰ্গত যাম, সেই মানুহ শয়তানৰ পৰা জয়যুক্ত পোৱা মানুহ হয়। आमीन। आमीन। जिनके पास ये विश्वास है, যাৰ লগত এই বিশ্বাসটো আছে, जिनके पास ये विश्वास है, वो दुष्ट पर, इस संसार पर विजय पाया हुआ व्यक्ति है। যি মানুহৰ লগত এই বিশ্বাসটো আছে তেওঁ এই দুষ্টজনৰ ওপৰত জয়যুক্ত হৈছে। वो आदमी को शैतान नरक में नहीं लेके जा सकता। সেই মানুহজনক শয়তানে নৰকত নিব নোৱাৰে। वो कितना भी आपको दोष लगाए, যিমানে আপোনাক দুখী आप নধৰক, से कितना भी लड़े, যিমানে আপোনাৰ লগত নুযুজক आपको কিয়, नरक में नहीं लेके जा सकता, আপোনাৰ নৰকত লৈ যাব क्योंकि নোৱাৰে। आप उसके वश में नहीं हो। কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ নাতে নাই, आप उसके वश में नहीं हो, আপুনি তেওঁৰ হাতত নাই, आप प्रभु यीशु के वश में हो। প্ৰভু যীশুৰ হাততহে तो আপুনি यीशु আছে। के वश में हो, इसका मतलब क्या है? প্ৰভুৰ হাত যীশুৰ হাতত আছে মানে आप কি? वचन के वश में हो। বাক্যৰ হাতত আছে। और वचन क्या सिखाता है? বাক্যই কি শিকায়? आप पवित्र हो, পবিত্ৰ आप হয়, धर्मी हो, ধাৰ্মিক और হয়, परमेश्वर आपके पाप कभी याद नहीं আৰু करता। ঈশ্বৰে পাপ কেতিয়াও মনত নকৰে। तो ये विश्वास परमेश्वर हमारे मन में यीशु मसीह के द्वारा बोते हैं। আৰু এই বিশ্বাসটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি বৈ দিয়ে। तो आप सबके मन में ये विश्वास है क्या? সকলোৰে মনতে বিশ্বাসটো আছে নে? आपके मन में विश्वास है कि आपके पाप अनंत काल के लिए क्षमा किए जा चुके हैं? আপোনাৰ মনত এইটো বিশ্বাস আছে নে যে আপোনাৰ পাপ অনন্ত কালৰ কাৰণে ক্ষমা কৰা হৈছে? क्या सबके मन में विश्वास है? সকলোৰে মনত এইটো বিশ্বাস আছে নে? परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करता, ये विश्वास है? ঈশ্বৰে যে আপোনাৰ পাপ মনত নকৰে এইটো বিশ্বাস আছে নে? पक्का है? আছে নে? तो आपने उस संसार पर विजय प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त তেনেহ'লে किया এই है? পৃথিৱীত আপুনি জয়যুক্ত হ'ল নে নাই? आपने उस दुष्ट पर विजय प्राप्त किया है, नहीं किया है? আপুনি এই দুষ্টৰ ওপৰত জয়যুক্ত হ'ল নে নাই? सही है ना? হয় নে? ये आत्मिक जीवन है, এইটো আত্মিক ये জীৱন হয়। परमेश्वर हमें देना चाहता है। এইটো ঈশ্বৰে আমাক দিব বিচাৰে। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। কিন্তু বহুত মানুহে এই কথাটো নামানে। वो कहते हैं हम रोज पाप करते हैं, हम कैसे खुद को धर्मी बोलेंगे? তেওঁলোকে কয় আমি সদায় পাপ কৰো, কেনেকৈ নিজক ধাৰ্মিক हम বুলি ক'ব रोज पाप পাৰো? करते हैं, खुद को पवित्र कैसे बोल सकते हैं? সদায় পাপ কৰো, নিজক পবিত্ৰ বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰো? इसलिए वो कहते हैं हम पापी हैं, সেইকাৰণে তাহাঁতে কয় যে আমি পাপী क्योंकि হয়। वो पुत्र यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। কাৰণ তেওঁ পুত্ৰ যীশুক বিশ্বাস নকৰে। इसके लिए वो लोग दुष्ट के वश में हैं। সেইকাৰণে তেওঁলোকে দুষ্টৰ হাতত আছে। जो मानता है कि मैं पापी हूँ, যোনে মানে যে মই পাপী হয়, मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, মোৰ পাপ ক্ষমা হোৱা নাই, ये दुष्ट के वश में है। তেওঁ দুষ্টৰ হাতত আছে। और जो मानता है पुत्र यीशु को, আৰু যোনে পুত্ৰ যীশুক মানে, जो मानता है मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, যোনে মানে যে মোৰ পাপ ক্ষমা হৈছে, मेरे पाप अनंत काल के लिए मिटाए जा चुके हैं, মোৰ পাপ অনন্ত কালৰ কাৰণে ধোৱা হৈছে, प्रभु ने मुझे अनंत काल के लिए छुटकारा दिया है, প্ৰভুৱে মোক অনন্ত কালৰ কাৰণে মুক্তি দিছে, मेरे हर पाप की कीमत चुकाई जा चुकी মোৰ है, গোটেই পাপৰ বেজ দিয়া হৈছে, यीशु के लहू से मेरे पाप धोए जा चुके हैं। যীশুৰ তেজেৰে মোৰ পাপ ধোৱা হৈছে। ये इंसान वो है जो पुत्र पर विश्वास करता है। সেই মানুহজন সেইজন হয় যোনে পুত্ৰত বিশ্বাস কৰে। इसका विश्वास संसार पर विजय प्राप्त करता है। তেওঁৰ বিশ্বাসে পৃথিৱীত জয়যুক্ত तो পায়। ये संसार पर विजय प्राप्त करने का विश्वास है या नहीं है? এই সংসাৰত জয়যুক্ত হোৱাৰ বিশ্বাস আছে নে নাই? है? पक्का? आमीन। तो ये निर्गमन की पुस्तक में এই যাত্ৰা পুস্তকত बहुत सारी बातें लिखी है 12 अध्याय में, 12 অধ্যায়ত বহুত কথা লিখিছে। लेकिन एक बात जरूरी है, এটা কথাই দৰকাৰী। ये स्टोरी को अगर आप देखते हैं तो এই কাহিনীটো যদি চাই, ये स्टोरी में परमेश्वर इजरायलियों को क्या बोल रहे हैं? এই কাহিনীত ইজৰাইলীসকলক ঈশ্বৰে কি কৈছে? तुम्हारे घराने के अनुसार एक मेमना ले लो, তোমাৰ ঘৰ অনুসাৰে এটা মেৰ পোৱালি লোৱা, उसको काटो, তাক কাটা, उसका लहू दरवाजे के चौखट पे लगाओ। আৰু তাৰ তেজটো দুৱাৰত লগাবা। तो हालांकि ये चैप्टर में बहुत कुछ लिखा है, যদিও এই চেপ্টাৰত বহুত কিবা কিবি লিখিছে, उसको कैसे खाना है लिखा है, কেনেকে খাব লাগে লিখিছে, कब खाना है वो भी लिखा है, কেতিয়া খাব লাগে লিখিছে, कैसे पकाना है वो भी लिखा है, কেনেকে বনাব লাগে एक লিখিছে, पैर से खाना वो भी लिखा हुआ है, এটা ভৰিৰে খাব লাগে এইটো লিখিছে, बहुत कुछ लिखा है। বহুত কিবা কিবি লিখিছে। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা কি? आप सबके सब चीज में आप आगे पीछे हो गए, नो प्रॉब्लम, সব বস্তুতে আগ পিছ হৈছে, একো প্ৰব্লেম নাই। लेकिन एक विषय में आप आगे पीछे नहीं होना है। কিন্তু এটা বিষয়ত আগ পিছ হ'ব নালাগে। कौन सा विषय में? কোনটো বিষয়ত? वो है 13 वचन। এইটো হ'ল 13 পদ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। निर्गमन 12:13। যাত্ৰা পুস্তকৰ 12:13। আৰু তোমালোকে যি যি ঘৰত থাকা সেই ঘৰত সেই তেজেৰে তোমালোকৰ অৰ্থে চিন হ'ব, তাতে মই সেই তেজ দেখি তোমালোকক এৰি থৈ যাম, আৰু মই মিছৰ দেশত সংহাৰ কৰোঁতা তোমালোকক বিনষ্ট কৰিবলৈ কোনো আপদে তোমালোকক নেপাব। यहाँ पे क्या लिखा है? কি লিখিছে? जब तुम मेमने को बलि करोगे যেতিয়া মেৰ পৰে
বলি দিবা वो मेमने के लहू को दरवाजे के चौखट पे लगाओगे। সেই মেৰপলি তেজটো দুৱাৰৰ ওপৰত লগাবা उस दिन मिस्र देश में मृत्यु का दूत आएगा, সেইদিনাখন মিশ্ৰ দেশৰ মৃত্যুৰ দূত আহিব सबका न्याय करने के लिए, সকলোৰে ন্যায় কৰিবলৈ सबको मारने के लिए। চবকে মাৰিবলৈ क्यों? কিয় क्योंकि पूरा मिस्र दुष्ट के वश में है, কাৰণ গোটেই মিশ্ৰটো দুষ্টৰ হাতত इसलिए আছে परमेश्वर का न्याय आएगा। কাৰণ ঈশ্বৰ ন্যায় আহিব लेकिन जिन घरों में तुम रहोगे, কিন্তু যোনটো ঘৰত তুমি থাকিবা तुम्हारे घर के दरवाजे पे लहू लगाना, তোমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত তেজ লগাবা जब मृत्यु का दूत आएगा, মৃত্যুৰ দূত যেতিয়া আহিব किसको देखेगा? কাক চাব लहू को देखेगा। তেজক চাব समझ में आया? বুজি পাইছা वो ये नहीं देखेगा कि तुम कड़वे साग पात से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, তেওঁক তুমি টেঙা তিতা শাকেৰে খাইছানে নাই সেইটো নাচাব वो नहीं देखेगा। সেইটো নাচায় हाँ, ये करने को बोला है, সেইটো কৰিবলৈ কৈছে लेकिन वो देखा नहीं जाएगा। কিন্তু এইটো নাচায় ইমান मृत्यु का दूत ये नहीं देखेगा तुम एक पैर से खा रहे हो या दो पैर से खा रहे আৰু हो, মৃত্যুৰ দূতে এইটো নাচায় যে এটা ভৰি দেখাইছে নে দুটা ভৰি দে वो मृत्यु का दूत वो नहीं देखेगा। মৃত্যুৰ দূতে সেইটো নাচায় लेकिन अगर तुम बाइबल को ठीक नहीं जानोगे तो, কিন্তু বাইবেলটো যদি ঠিক ৰূপে हाँ, নাজানা मैं तो एक पैर से खा रहा हूँ মইতো এটা ভৰি দি খাই আছো और मैं भी कड़वे साग पात के साथ खा रहा हूँ, মইতো টেঙা শাকেদি খাই আছো लेकिन दरवाजे पे लहू नहीं लगाया। কিন্তু দুৱাৰত তেজ লগোৱা নাই दूत आएगा, भोग देगा, দূত আহিব আৰু মাৰি পেলাব और आप क्या बोलोगे? আৰু কি কব मैं एक ही पैर से तो खा रहा था, মই এটা ভৰি দিতো খাই আছিলো हाँ, मैं कड़वे साग पात से तो खा रहा था। মই তিতা শাকেদিয়েতো খাই আছিলো समझ में आया? বুজি পাইছেনে आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। কবলৈ বহুত কিবা কিবি হব तो बाइबल में लिखा है, मुझे प्रभु प्रभु करने वाला हर एक जन स्वर्ग में नहीं जाएगा। আৰু বাইবেলত কৈছে মোক সকলোৱে প্ৰভু বোলাজনে স্বৰ্গত নাযায় वो दिन बहुत लोग बोलेंगे तेरे नाम से मैंने भूत निकाला, সেইদিনাখন বহুতে কব মই তোমাৰ নামেৰে मैं ভূত यीशु के খেদিছো। नाम से भूत निकालता हूँ इसके लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। মই যীশু নামেৰে যে ভূত খেদিছো সেইটো কাৰণে মই স্বৰ্গত নাযাওঁ मैं पास्टर हूँ, मैं संदेश देता हूँ इसके लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। মই পাষ্টাৰ হয় মই উপদেশ দিওঁ সেইকাৰণে যে মই স্বৰ্গত যাম তেনে हाँ, मैं নহয় पास्टर हूँ, बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करता हूँ इसके लिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। মই পাষ্টাৰ হয় কাৰণে যে ডাঙৰ ডাঙৰ ভৱিষ্যবাণী কৰোঁ সেইটো কাৰণে স্বৰ্গত নাযাওঁ मेरा विश्वास क्या है ये बहुत जरूरी है। মোৰ বিশ্বাস কি হয় সেইটো দৰকাৰী হয় क्या मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह बलिदान होके मुझे पवित्र किया, মই বিশ্বাস কৰো নে যে যীশুৱে বলিদান হৈ মোক পবিত্ৰ কৰিছে तभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। তেতিয়া মই স্বৰ্গত যাম अगर मैं विश्वास नहीं करता, যদি মই বিশ্বাস নকৰো मैं अगर विश्वास नहीं करता कि यीशु ने खुद बलिदान होके मुझे पवित्र किया, মই যদি বিশ্বাস নকৰো যে যীশুৱে নিজে বলিদান হৈ মোক পবিত্ৰ কৰিছে बाकी मैं कुछ भी करूं, মই যিয়ে নকৰো কিয় दिन रात उपास रखूं, দিন ৰাতি উপবাস কৰো हमेशा चर्च में रहूं, সদায় গীৰ্জাত থাকো सारा संपत्ति चर्च को दे दूं সকলো সম্পত্তি গীৰ্জাক দি দিওঁ और बहुत अच्छे अच्छे काम करूं, আৰু বৰ ভালদৰে কাম কৰো अनाथ आश्रम खोल लूं, অনাথ আশ্ৰম খুলিছো वृद्धाश्रम खोल लूं, বৃদ্ধ আশ্ৰম খুলিছো हाँ, आश्रम ही आश्रम आश्रम ही आश्रम कर চব दूं, ফালে আশ্ৰম কৰি দিওঁ पूरा स्कूल खोल दूं, পুৰা স্কুল पूरा খুলো हॉस्पिटल खोल दूं, হস্পিটেল খুলি सारे দিওঁ पेशेंट को मुफ्त में दवाई कर दूं, চব পেচেণ্টক বিনামূল্যে দাৱাই सारे দিওঁ भिखारियों को लाके रख के उनको मुफ्त में खाना खिलाऊं। গোটেই ভিখাৰীক আনি বিনামূল্যে খাদ্য খুৱাও ये करो, प्रॉब्लम नहीं है, সেইটো কৰা একো প্ৰব্লেম নাই लेकिन ये तुमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, কিন্তু এয়াই তোমাক স্বৰ্গত লৈ নাযায় क्योंकि तुम पाप में जन्मे हुए पाप के पुलिंदे हो, কাৰণ তুমি পাপত জন্মা পাপৰ বীজ হয় और तुम्हारे पाप को क्षमा होने के लिए परमेश्वर का बेटा क्रूस पे मरा है, আৰু তোমাৰ পাপক ক্ষমা কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ ক্ৰুচত মৰিছে और परमेश्वर के बेटे के खून से तुम्हारे पाप धुले हैं। আৰু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ তেজেৰে তোমাৰ পাপ अगर ধোৱা হৈছে। परमेश्वर के बेटे के खून में तुम विश्वास करते हो तो ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ তেজত যদি তুমি বিশ্বাস কৰা तब तुम कह सकते हो मेरे पाप धुल गए हैं, তুমি ক'ব পাৰা যে মোৰ পাপ ধোৱা হৈছে मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, মোৰ পাপ ক্ষমা হৈ গৈছে मेरे पाप की सजा मौत परमेश्वर के बेटे ने क्रूस पे भुगत लिया है। মোৰ পাপৰ বেজ মৃত্যু ঈশ্বৰ পুত্ৰে ক্ৰুচত ভুগিলে पल्लव के पापा को कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, वो सोचते हैं कि मैं मेरे परिवार का अच्छा से देखभाल कर रहा हूँ, मैं क्यों स्वर्ग नहीं जाऊंगा। তেওঁ কেতিয়াবা ভাবে চাগে পল্লৱৰ দেউতাই যে মই মোৰ পৰিয়াল ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিছো মই কিয় স্বৰ্গত নাযাম लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, माफ कीजिए। কিন্তু ক্ষমা কৰিব বাইবেলত তেনেকে লিখা आप নাই अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कीजिए, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়াল ভালদৰে চাওক अच्छे से नौकरी कीजिए, ভালদৰে চাকৰি उन्हें কৰক पालिए, তাতক পালক लेकिन ये मत सोचिए कि आपने अच्छा नौकरी किया तो आपके पाप धुल जाएंगे। এনেকৈ নাভাবিব যে ভাল চাকৰি কৰিছে কাৰণে পাপ ধোৱা হৈছে आपने अपनी पत्नी को बहुत अच्छा खाना खिलाया इसके लिए आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। আপুনি আপোনাৰ পত্নীক বহুত ভাল খাদ্য খুৱাইছে কাৰণে পাপ ধোৱা হ'ব সেনেকা নহয় आपके बच्चों को आपने अच्छे से पढ़ाया लिखाया बोल के आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰাইছে কাৰণে যে পাপ ধুব তেনে নহয় अंत में आपका पाप आपको नरक में लेके जाएगा অন্তত আপোনাৰ পাপে নৰকতে লৈ যাব और बीवी उधर स्वर्ग में रहेगी। আৰু পত্নী যাতে স্বৰ্গত থাকিব थैंक यू खाना खिलाने के लिए, খাদ্য খুৱাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ बहुत मेहनत किया मेरे लिए, মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলা चर्च में जाके वचन भी नहीं सुना, थैंक यू। গীৰ্জাত গৈতো বাক্য নুশুনিলা থেংক ইউ वो तुम्हारे लिए नरक में नहीं आएगी।
তাই তোমাৰ কাৰণে নৰকত নাহে इसलिए तुम्हारा व्यक्तिगत उद्धार बहुत बड़ा बात है। তোমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত উদ্ধাৰ বহুত ডাঙৰ কথা मैं आपको अपमान नहीं कर रहा हूँ, আপোনাক অপমান কৰা নাই लेकिन आपका जो तरीका है उस तरीके से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। কিন্তু যি ধৰণ সেইটো ধৰণেৰে স্বৰ্গত যাব हर নোৱাৰে एक इंसान अपने पापों की क्षमा व्यक्तिगत पाना पड़ता है, সকলো ব্যক্তি নিজৰ পাপৰ ক্ষমা ব্যক্তিগত পাব লাগে क्योंकि हम सब ने व्यक्तिगत पाप किया है। কাৰণ আমি সকলোৱে ব্যক্তিগত পাপ हम কৰিছো पाप में जन्मे हैं, আমি পাপত জন্মিছো हमने सबने पाप किया আমি है, সকলোৱে পাপ কৰিছো इसलिए हर एक ने पाप का क्षमा पाना है। সকলোৱে পাপৰ ক্ষমা পোৱাৰ দৰকাৰ और पाप की क्षमा सिर्फ यीशु के लहू से हुआ है। আৰু পাপৰ ক্ষমা কেৱল যীশুৰ তেজেৰে হৈছে यीशु के लहू ने ही हमारे पाप धोए हैं। যীশুৰ তেজেহে আমাৰ পাপ ধুইছে यीशु की मृत्यु में हमारा पाप का सजा खत्म हुआ है। যীশুৰ মৃত্যুত আমাৰ পাপৰ শাস্তি খতম হৈছে ये बात बहुत लोग चूक जाते हैं এই কথা বহুত মানুহে গম নাপায় और वो लोग क्या बोलते हैं, আৰু কি কয় मैं चर्च जाता हूँ, মই গীৰ্জাত যাওঁ मेरा बपतिस्मा हुआ है, মোৰ বাপ্তিস্ম হৈছে 15 साल हो गया बपतिस्मा लेके, 15 বছৰ হৈ গ'ল বাপ্তিস্ম मैं अपना परिवार छोड़ दिया, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दिया, अभी मैं पास्टर हूँ, মই এতিয়া পৰিয়াল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি বাদ দিলো মই এতিয়া পাস্তৰ হয় 15 साल मैंने बाइबल कॉलेज किया है, 15 বছৰ মই বাইবেল কলেজ अभी मैं কৰিছো डीन हूँ बाइबल कॉलेज में, এতিয়া বাইবেল কলেজৰ মই ডিন হয় फिर भी आप नरक में ही जाओगे। তথাপি আপুনি নৰকতে যাব डीन बन के कोई स्वर्ग नहीं जाता, ডিন হৈ পেলাই কোনো স্বৰ্গত नहीं নাযায় तो सभी डीन बन जाते। নহলেতো সবেই ডিন হৈ যাব यीशु मसीह स्वर्ग में रहते और बोलते सब डीन बनो और स्वर्ग में आओ। আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গত থাকি পেলাই ক'লে সবেই ডিন হৈ যোৱা আৰু স্বৰ্গত আহি যোৱা बाइबल में कहीं नहीं लिखा है तुम पास्टर बन जाओगे, मिशनरी बन जाओगे, डीन बन जाओगे, एल्डर बन जाओगे, डिकन बन जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, बिल्कुल नहीं है। বাইবেলত কতো লিখা নাই যে পাস্টাৰ এল্ডাৰ ডিন ডিকেন এইবিলাক হলে যে তুমি স্বৰ্গত আহিবা स्वर्ग में कौन जाएगा? স্বৰ্গত কোন যাব जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा। যোনে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীশুক বিশ্বাস কৰে तो यीशु को विश्वास करना मतलब क्या है? যীশুক বিশ্বাস কৰা মানে কি वो जन्मा मुझे मेरे पाप से छुड़ाने के लिए, তেওঁ জন্মিলে মোক মোৰ পাপৰ পৰা বচাবলৈ उसने जगत का पाप अपने ऊपर उठाया। তেওঁ জগতৰ পাপ নিজৰ ওপৰত जब यीशु উঠালে ने जगत का पाप उठाया, मेरा भी पाप उठाया। যেতিয়া যীশুৱে জগতৰ পাপ উঠালে মোৰ পাপো উঠালে यीशु जब क्रूस पे मरा, मेरा पाप का सजा खत्म हो गया। যীশুৱে যেতিয়া ক্ৰুচত মৰিলে মোৰ পাপৰ বেজ মৃত্যু খতম अगर হ'ল आपके मन में विश्वास आया है कि यीशु जिस दिन मरा आपके पाप क्रूस पे खत्म हो गए, पाप आपके मन को पीड़ित नहीं कर सकता। আৰু যেতিয়া বিশ্বাস আহিব যে যীশুৱে ক্ৰুচত মৰি মোৰ পাপ খতম কৰিলে পাপে আপোনাৰ মনক কষ্ট দিব নোৱাৰে आप समझ रहे हैं? বুজিছেনে और वो पाप धोने का आप कोशिश नहीं करोगे। আৰু সেই পাপটো ধুবলৈ চেষ্টা কৰিবই নালাগিব परमेश्वर में पापी हूँ, পিছে মই পাপী হয় आज जाने अनजाने में झूठ बोला, আজি নাজানি জানি মিছা কৰি দিলো आज जाने अनजाने में चोरी किया, আজি নাজানি জানি চুৰ কৰি দিলো मेरे पाप क्षमा करो। মোৰ পাপ ক্ষমা কৰা ऐसा कौन प्रार्थना करता है? কোনে এনেকে প্ৰাৰ্থনা কৰে जो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर के बेटे के मृत्यु से, लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, वो पाप क्षमा मांगते ही रहता है। যোনে বিশ্বাস নকৰে যে যীশুৰ তেজেৰে মোৰ পাপ ক্ষমা হৈছে তেওঁলোকে পাপ ক্ষমাই খুজি থাকে जिसके पास विश्वास नहीं है, যাৰ লগত বিশ্বাস নাই वो दुष्ट से हार जाएगा, তেওঁ দুষ্টৰ পৰা হাৰি যাব संसार से हार जाएगा। পৃথিৱীৰ পৰা হাৰি যাব ऐसे लोगों के मन में संसार प्रभुत्व करता है। এনেকুৱা মানুহৰ মনত সংসাৰে ৰাজত্ব কৰে लेकिन जिनके पास विश्वास है, কিন্তু যাৰ লগত বিশ্বাস আছে उनके मन में यीशु प्रभुत्व करता है। তাৰ मনত যীশুৱে ৰাজত্ব इसलिए কৰে हमारा विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण है। কাৰণ আমাৰ বিশ্বাসটো বহুত দৰকাৰী হয় इसलिए हर संडे जब आप चर्च आते हो, প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে যেতিয়া গীৰ্জাত मैं আহে हमेशा आपको पाप क्षमा का प्रचार करता हूँ, সদায় পাপ ক্ষমাৰ প্ৰচাৰেই কৰো ताकि आज तो आप वो विश्वास को ग्रहण कर लो। যাতে আজিতো সেই বিশ্বাসটো গ্ৰহণ কৰে आज तो आप ये विश्वास को ग्रहण कर लो। আজিতো এই বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰে बोले आज तक आपने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं, आज विश्वास ग्रहण करो। আজিলৈ বিশ্বাস কৰা নাই কিন্তু আজি কৰি দিয়ক अगर आपके मन में विश्वास आएगा तो যদি বিশ্বাস আজি আহে मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवाही दो। সাক্ষ্য দিয়া বুলি কোৱাৰ দৰকাৰ নহব आप आगे आके खड़े रहोगे, আপুনি আগলৈ আহি থিয় দিব बोलोगे, কব हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए, অ মোৰ পাপ ক্ষমা হৈ গৈছে हाँ मैं धर्मी हूँ, মই ধাৰ্মিক হয় हाँ मैं पवित्र মই हूँ। পবিত্ৰ হয় परमेश्वर को धन्यवाद। ঈশ্বৰক अब ধন্যবাদ हमेशा अपने उद्धार की गवाही दोगे। সদায় নিজৰ উদ্ধাৰৰ সাক্ষ্য দিব सिर्फ चर्च में आके गवाही दोगे ऐसा नहीं है। কেৱল যে গীৰ্জাত আহি সাক্ষ্য দিব তেনে आप নহয় जिसको भी मिलोगे, যাকেই লগ পাব एक बात जरूर बोलोगे, এটা কথা নিশ্চয়ে কব तेरे पाप भी धुल गए हैं। তোমাৰ পাপো ধোৱা হৈছে वो माने या नहीं माने, आप बॉदर नहीं करोगे। তেওঁ মানক বা নামনক আপুনি সেইটো চিন্তা নকৰিব सही है पंकज? হয় না तो हमारा भाई पंकज बहुत लंबे समय हमारे चर्च में आता था, আমাৰ ভাই পংকজে দীঘলীয়া সময় আমাৰ গীৰ্জাত कोना আহিছে पकड़ के बैठता था। কোনাটো বহি আছিলে ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से वचन सुनता है, এনেকুৱা লাগে বহুত ভালদৰে বাক্য শুনে आंखें भी बड़ी बड़ी है ना, চকুটো ডাঙৰ ডাঙৰ হয় নহয় ऐसा वचन सुनता है, ऐसा लगता है। পুৰা চকুটো ডাঙৰ কৰি বাক্য শুনে लेकिन उसके मन में पाप क्षमा का विश्वास नहीं था। কিন্তু তেওঁৰ হৃদয়ত পাপ ক্ষমাৰ বিশ্বাস নাছিলে लेकिन समस्या क्या है, কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি बाहर के लोगों को बोलोगे तुम उद्धार नहीं पाए तो वो लोग इतना बुरा नहीं मानते हैं, বাহিৰৰ মানুহক যদি কয় উদ্ধাৰ পোৱা নাই ইমান বেয়া নাপায় लेकिन हमारे चर्च में आने वाले लोगों को अगर बोला जाए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो आग जला देते हैं वो लोग। কিন্তু আমাৰ গীৰ্জাৰ মানুহক যদি কয় তুমি উদ্ধাৰ পোৱা নাই জুই জ্বলাই দিয়ে तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ
ऐसा बोल देंगे ना तो वो आग लगा देंगे वो। আৰু তোমাৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই বুলি যদি কৈ দিওঁ পুৰা জুই জ্বলাই দিব। हम 5 साल से गुड न्यूज मिशन में आते हैं। 5 বছৰৰ পৰা গুড নিউজ মিছনত আহো। तो मैं पंकज को बोल नहीं पा रहा था। পংকজক ক'ব পৰাই कोई নাছিল। भाई बहनों को मैं शुरू से नहीं बोला, কোনো ভাই ভনীক আৰম্ভণিতে মই কোৱা নাই। लेकिन बहुत भाई बहन उद्धार नहीं पाए हुए थे, কিন্তু বহুত মানুহে উদ্ধাৰ পোৱা নাছিলে। अभी भी हैं, এতিয়াও আছে। अभी भी हैं। এতিয়াও আছে। आप में से बहुत लोग उद्धार नहीं पाए हुए लोग भी हो, আপোনাৰ মাজত বহুতে উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহ আছে। मैं जानता हूँ, মই জানো। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ, কিন্তু মই ৰখি আছো। क्योंकि प्रभु की दया के बिना आप उद्धार भी नहीं पा কাৰণ सकते। প্ৰভুৰ দয়া নহলে আপুনি উদ্ধাৰ পাব নোৱাৰে। लेकिन एक दिन এদিন लॉकडाउन के दौरान লকডাউনৰ যোগেদি पंकज को क्या हुआ पता नहीं, পংকজৰ কি হ'ল নাজানো। वो मेरा फेसबुक सुनने लग गया। মোৰ ফেচবুক শুনিব ধৰিলে তেওঁ। तो जब वो फेसबुक सुनने के लिए उसने जैसे ही फेसबुक को खोला, ফেচবুক শুনিবলৈ যেতিয়া ফেচবুক খুলিলে उस समय मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय से। মই প্ৰথম কৰিন্থিয় 6 অধ্যায়ৰ পৰা সুবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি আছিলো। व्यभिचार करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ব্যভিচাৰ কৰা মানুহ, চুৰ কৰা মানুহ, शराब पीने वाले মদ लोग, খোৱা মানুহ वो लोग स्वर्ग में नहीं তাহাঁতে जाएंगे। স্বৰ্গত নাযায়। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे, তোমাৰ মাজত বহুতে এনেকুৱা লোক আছিলা, लेकिन तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो। কিন্তু তুমি আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে ধোৱা হৈছা। परमेश्वर की आत्मा से तुम शुद्ध किए गए हो, ঈশ্বৰ আত্মাই তোমালোকক সিদ্ধ কৰা तुम्हें হৈছে, धार्मिक किया गया है, তোমাক ধাৰ্মিক तुम কৰা पवित्र হৈছে, किए गए हो। তোমাক পবিত্ৰ কৰা হৈছে। ये वचन उसके मन में प्रवेश हो गया। এই বাক্যটো তেওঁৰ মনত প্ৰৱেশ কৰিলে। वो ज्ञान उसको किसने दिया? এই জ্ঞানটো তেওঁ কোনে দিলে? परमेश्वर के पुत्र यीशु ने दिया। ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীশুৱে দিলে। वचन का ज्ञान है वो। এইটো বাক্যৰ জ্ঞান तो হয়। वचन का ज्ञान क्या कहता है? বাক্যৰ জ্ঞানে কি কয়? पाप करने वाले लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, পাপ কৰা মানুহে স্বৰ্গত যাব নোৱাৰে। लेकिन तुम लोग ऐसे थे जिन्होंने पाप किया। কিন্তু তোমালোকৰ এনেকুৱা মানুহ আছিলে যোনে तुम পাপ लोग वो लोग हो কৰিছে। जिन्होंने झूठ बोला, তোমালোক সেইবিলাক মানুহ যোনে মিছা चोरी কৰিছে, किया, চুৰ কৰিছে, व्यभिचार किया। व्यभिचार तुम কৰিছে। ऐसे लोग हो, তোমালোক এনেকুৱা মানুহ হয়। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए কিন্তু তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে परमेश्वर के बेटे ने अपना खून बहाया, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰই নিজৰ তেজ বোৱালে। अपने खून से तुम्हें धो दिया, নিজৰ তেজেৰে তোমাক ধুই দিছে, तुम्हें धर्मी बना दिया, তোমাক ধাৰ্মিক বনাই तुम्हें দিছে, पवित्र बना दिया। পবিত্ৰ বনাই দিছে। ये विश्वास प्रवेश हो गया। আৰু সেই বিশ্বাসটো প্ৰৱেশ কৰিলে। तो आपको लगता है विश्वास आने के बाद वो चुप रहा होगा? বিশ্বাস অহাৰ পাছতে চুপ থাকিছে নে? अभी जहां मैं प्रचार करता हूं मेरे बाद वो प्रचार करता है। মই য'ত প্ৰচাৰ কৰো মোৰ পাছত তেওঁৱে প্ৰচাৰ কৰে। समझ में आया? বুজি পাইছে? जहां मैं प्रचार कर रहा होगा য'ত মই প্ৰচাৰ কৰি থাকো वो फिर से जाकर के उनको समझाएगा क्या मैंने प्रचार किया। আকৌ গৈ পেলাই তেওঁক বুজাই যে মই কি প্ৰচাৰ ये কৰিছো। कैरेक्टर आता है लोगों के এটা अंदर। চৰিত্ৰ আহি जब যায়। लोग उद्धार पाते हैं, যেতিয়া মানুহে উদ্ধাৰ পায়, पाप क्षमा का विश्वास पाते পাপ हैं, ক্ষমাৰ বিশ্বাস যেতিয়া वो পায়, विश्वास उनके अंदर पैक होके नहीं रह সেই सकता। বিশ্বাসটো তাহাঁতৰ ভিতৰতে থাকি নাযায়। वो दूसरों से जब भी मिलते हैं আনক যেতিয়াই লগ পায় वो बोलना चाहते हैं। ক'ব বিচাৰে। क्या बोलना चाहते हैं? কি ক'ব বিচাৰে? मैं धोया गया हूँ, মই ধৌত হৈছো, मैं धर्मी किया गया মই हूँ, ধাৰ্মিক হৈছো, मैं पवित्र किया মই गया हूँ, পবিত্ৰ হৈছো, मैं धर्मी हूँ, মই ধাৰ্মিক मैं হয়, पवित्र মই हूँ। পবিত্ৰ হয়। दूसरे लोग उसको पूछते तू पाप नहीं करता है? বেলেগ মানুহে তেওঁক সোধে তুমি পাপ নকৰা নে? वो बोलता मैं पाप करता हूँ फिर भी मैं धोया गया हूँ। তেওঁ কয় যে মই পাপ কৰো তথাপি মই ধৌত হৈছো। वो लोग समझ नहीं सकते। মানুহে এইটো বুজি নাপায়। संसार के लोग उनको पागल बोलते हैं, মানুহে তেওঁক পাগল বুলি কয় क्रिश्चियन लोग उनको हेरोटिक बोलते हैं, मतलब झूठे लोग बोलते हैं। আৰু খ্ৰীষ্টীয় মানুহবিলাকে তাহাঁতক মানে নাটক কৰা, মিছা কোৱা বুলি ভাবে। कैसे तुम झगड़ा भी करता है और पवित्र भी है? কেনেকে তুমি কাজিয়াও কৰা, তুমি পবিত্ৰও হয়। अजीब है ना? ষ্ট্ৰেঞ্জ হয়। तुम्हें बोलता हाँ मैं झगड़ा भी करता हूँ मैं पवित्र भी हूँ। মই কাজিয়া কৰো কিন্তু মই পবিত্ৰও হয়। तो झगड़ा करने से तू पापी नहीं बनता? কাজিয়া কৰিলে পাপী হৈ নোযোৱা? ये पाप भी यीशु के लहू में धुल गए हैं। এই পাপীটোৱে যীশু খ্ৰীষ্টত ধোৱা হৈছে। ये मेरा विश्वास है, এইটো মোৰ বিশ্বাস। इसलिए मैं पवित्र हूँ। সেইকাৰণে মই পবিত্ৰ। ये विश्वास जो मेरे अंदर है ना, এই যি বিশ্বাস মোৰ লগত আছে, ये विश्वास हमें विजय देता है। এই বিশ্বাসে আমাক জয়যুক্ত ये কৰে। विश्वास हमें शैतान से जीतने लगाता এই है। বিশ্বাসে আমাক শয়তানৰ লগত জিকিব ये দিয়ে। विश्वास हमें संसार से जीतने लगाता এই है। বিশ্বাসে আমাক শয়তানৰ পৰা জিকিব দিয়ে। ये आत्मिक जीवन है। এইটো আত্মিক জীৱন হয়। तो ये निर्गमन के 12 अध्याय में भी এই যাত্ৰা পুস্তকৰ 12 অধ্যায়টো आप लोग ने मांस कैसा काटा ये देखेगा नहीं स्वर्गदूत। স্বৰ্গদূতে এইটো নাযায় যে মাংসটো কেনেকে কাটিছে। ये सब क्या है पता है? বিলাক কি হয়? जब आप बाइबल में आते हो যেতিয়া বাইবেলত আহে बहुत कुछ है। বহুত কিবা কিবি আছে। आपको बाइबल भी पढ़ना है, বাইবেলো পঢ়িব লাগে, प्रार्थना भी करना है, প্ৰাৰ্থনাও কৰিব লাগে। समझ रहे? বুজি পাইছেনে? बाइबल भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, चर्च भी आना है, গীৰ্জাটো আহিব লাগে, दान भी देते हैं, দানো দিয়ে, दशमांश भी देते हैं, দশম ভাগত দিয়ে, साथ मिलकर उपवास भी करते हैं, একেলগে মিলি উপবাসো কৰে, प्रचार का काम भी करते हैं। প্ৰচাৰৰ কামো কৰে। लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमारा पाप नहीं धोता। কিন্তু এইবিলাকৰ একোৱে আমাৰ পাপ নুধুৱে। हाँ ये करना है, हम चर्च आना है,
আমি গিৰ্জাত আহিব লাগে, এইটো आप नहीं কৰিব आओगे লাগে। तो मैं डांटूंगा, আপুনি নাহিলে মই আপোনাক ধমকি দিম, आपको मैं प्रॉब्लम खड़ा करूंगा। মই প্ৰব্লেম কৰিম। लेकिन आप चर्च आते हो ये पाप धोता है, ऐसा नहीं है। কিন্তু গিৰ্জাত যে আহিছে সেইকাৰণে যে পাপ ধোৱা হৈছে তেনে নহয়। समझ रहे हैं? বুজি পাইছে? आपको बाइबल पढ़ना है, বাইবেল পঢ়িব লাগে, लेकिन बाइबल पढ़ने से पाप धुलते हैं ऐसा नहीं है। বাইবেল পঢ়িলে পাপ ধোৱা নাযায়। आप समझ रहे हैं? বুজিছেনে? आप पढ़ते हो ये ধুলवाना नहीं है। পঢ়িছে কাৰণে ধুইছে হেনে अब নহয়, दान देना है, দান দিব লাগে, दशमांश देना है, দশম ভাগ দিব लेकिन লাগে, इससे उद्धार नहीं होता। কিন্তু সিটোৰে উদ্ধাৰ নহয়। ये उद्धार पाए हुए लोग ऐसा काम करते हैं। উদ্ধাৰ পোৱা মানুহে এনেকুৱা কাম কৰে। उद्धार पाए हुए लोग चर्च जाते हैं। উদ্ধাৰ পোৱা মানুহে গিৰ্জা যায়। चर्च जाके किसी का उद्धार होता है ऐसा नहीं है। গিৰ্জাত গৈ কাৰো উদ্ধাৰ নহয়। उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। উদ্ধাৰটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে হৈছে। हमारे पाप यीशु के लहू से धोए गए हैं। আমাৰ পাপ যীশুৰ তেজেৰে ধোৱা तो आपको হৈছে। ये सेपरेट करने को आना चाहिए। এইটো বেলেগ কৰিব জানিব दरवाजे লাগিব। में क्या लगाना है? দুৱাৰত কি লগাব লাগে? लहू लगाना है। তেজ লগাব লাগে। मृत्यु का दूत क्या देखेगा? মৃত্যুৰ দূতে কি চাব? लहू देखेगा। তেজ চাব। लेकिन घर के अंदर কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত बहुत कुछ है। বহুত কিবা কিবি আছে। चर्च के अंदर গিৰ্জাৰ ভিতৰত बहुत कुछ है। বহুত কিবা কিবি আছে। दान है, দান আছে, दशमांश है, দশম ভাগ আছে, सर्विस है, সাৰ্ভিস আছে, उपवास है, উপবাস यूथ আছে, मीटिंग है, यूथ मीटिंग আছে, मैरिज सिस्टर्स है, Married sister मैरिड meeting, ब्रदर्स है। married brother टाइम पे আছে। नहीं आओगे तो पास्टर बम बम करता बैठेगा, चिल्लाते बैठेगा, मटन क्यों नहीं पकाए, मटन क्यों नहीं उबलाए, वो भी है টাইমত নাহিলে চিঞৰিব, মটন কিয় বনোৱা নাই, সেইটোও আছে, नहीं है? হয়নে? लेकिन हमारा उद्धार का विश्वास क्या है? কিন্তু আমাৰ উদ্ধাৰ বিশ্বাস কি? प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धुल गए हैं। আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে আমাৰ পাপ ধোৱা হৈছে। तो परमेश्वर क्या देखेगा? ঈশ্বৰে কি চাব? आपने कितना दान दिया वो देखेगा, আপুনি কিমান দান দিছে সেইটো চাবনে? आपने कितना उपवास किया वो देखेगा, কিমান উপবাস কৰিছে সেইটো आपने চাবনে? कितना प्रचार किया वो देखेगा। কিমান প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটো চাবনে? हाँ, जब आप सुसमाचार के लिए जीते हैं, उसको प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। উদ্ধাৰ পোৱা মানুহৰ কাৰণে এইটো এটা পুৰস্কাৰ আছে যোনে শুভবাৰ্তাৰ কাম কৰে। लेकिन आपने कितना प्रचार किया है उसके अनुसार आपका उद्धार नहीं है। কিন্তু আপুনি কিমান প্ৰচাৰ কৰিছে সেই অনুসাৰে উদ্ধাৰ নাই। ये मापदंड क्लियर रहना है। সেই মাপদণ্ডটো স্পষ্ট হ'ব লাগে। जब आपके मन में क्लियर है, যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়ত স্পষ্ট, दरवाजे पे लहू लगा हुआ है, দুৱাৰত তেজ লগোৱা আছে, तो घर के अंदर आराम से आप मटन उबाल सकते हैं। ঘৰৰ ভিতৰত আৰামত মটনটো বইল কৰিব পাৰে। उबला हो साग पात, कड़वे साग पात को उबाल सकते हैं। আৰু আপুনি তিতা শাকটো বইল কৰিব পাৰে। फिर एक पैर से खाओ, তাৰপিছত এটা ভৰিতে খাওক, जल्दी जल्दी से खाओ। সোনকালে খোৱা, सही है? হয়নে? लेकिन কিন্তু सब किया, সকলো কৰিলে, दरवाजे पे लहू नहीं लगाया, দুৱাৰত তেজ লগোৱা নাই, क्या होगा? কি হ'ব? मृत्यु का दूत मार देगा। মৃত্যুৰ দূতে মাৰি পেলাব। तो शैतान ये पीढ़ी में क्या कर रहा है? শয়তানে এইটো জেনেৰেশ্যন কি কৰি আছে? आपको सब चीज पे इंटरेस्टेड बना रहा है। সকলো বস্তুতে ইণ্টাৰেষ্টেড বনাই আছে। मैं कितना उपवास कर रहा हूँ, মই কিমান উপবাস কৰি मैं আছো, कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, কিমান প্ৰাৰ্থনা मैं কৰি कितना আছো, दान दे रहा हूँ, কিমান দান দি আছো, मैं समय में चर्च जा रहा हूँ, গীৰ্জাত সময়ত कितना গৈছো, चर्च का सेवा कर रहा हूँ। কিমান গীৰ্জা সেৱা কৰি আছো। लेकिन हमारे हृदय में रेस्ट नहीं है, किसको देख के? কিন্তু আমাৰ হৃদয়ত আৰাম নাই, কাক চাই? यीशु मसीह के लहू को देख के। যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজ तो চাই। न्याय कैसे होगा? ন্যায় কেনেকে হ'ব? विश्वास के अनुसार होगा। বিশ্বাস অনুসাৰে হ'ব। क्या विश्वास? কি বিশ্বাস? क्या सच्चे में आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा आप पवित्र किए गए हो? যে যীশু খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ ক্ৰুচত বলিদান দিয়াৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ যে হৈছে এইটো বিশ্বাস কৰে নে? अगर वो विश्वास आपके अंदर है সেই तो বিশ্বাসটো যদি ভিতৰত আছে, आपको अनंत जीवन ये तोहफा है। অনন্ত জীৱনটো এটা গিফ্ট হয়। आमीन। আমেন। तो मैं सच में आशा करता हूँ कि ये दो भाग को आप अलग अलग करोगे। আশা কৰিছো যে দুই ভাগটো বেলেগ বেলেগ কৰিব। नेपाल से मैंने आपको लेटर भेजा था, নেপালৰ পৰা লেটাৰ পঠাইছিলো, पूरा पढ़ लिया, গোটেই পঢ়িলে, लेकिन बेटी की शादी में नहीं आए। কিন্তু ছোৱালীৰ বিয়াত নাহিলে। अभागे लोग हो आप। আপোনাক পিটিফুল মানুহ, सही है? হয়নে? आपने पूरा बाइबल पढ़ लिया, গোটেই বাইবেলটো পঢ়িছে, 20 साल चर्च में गया, 20 বছৰ গীৰ্জাত গৈছে, लेकिन पापी के पापी रह गए, কিন্তু পাপীয়ে হৈ থাকে যদি स्वर्ग में नहीं जाएंगे। স্বৰ্গত যাব নোৱাৰিব। समझ रहे हैं इस बात को? বুজি পাইছেনে? इसलिए बाइबल को लिखने का उद्देश्य क्या है? বাইবেলটো লিখাৰ উদ্দেশ্য কি? परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায়। हम पाप में जन्मे हैं, আমি পাপত জন্মিছো, हमें पाप की क्षमा की जरूरत আমি है, পাপৰ ক্ষমাৰ দৰকাৰ। इसलिए यीशु को भेजा। সেইকাৰণে যীশুক পঠাইছে। यीशु ने हमारे सारे पाप उठाए, যীশু আমাৰ গোটেই পাপ উঠাইছে, क्रूस पर बलिदान हुआ ক্ৰুচত বলি হৈছে, और उसके लहू से हमें धो दिया। আৰু তেওঁৰ তেজেৰে আমাক ধুই দিছে। अब हम पापी नहीं हैं, এতিয়া আমি পাপী নহয়, हम धोए गए हैं, আমি ধৌত হৈছো, हम धर्मी किए गए हैं, ধাৰ্মিক কৰা हम হৈছে, पवित्र किए गए আমাক हैं, পবিত্ৰ কৰা हम হৈছে, शुद्ध किए गए हैं। খুচি কৰা হৈছে। ये विश्वास हमें स्वर्ग लेके এই जाता है বিশ্বাসে আমাক স্বৰ্গত লৈ और যায়। ये विश्वास हमें संसार पर विजय देता है। আৰু এই বিশ্বাসে আমাক পৃথিৱীৰ ওপৰত জয়যুক্ত কৰে। संसार हमारे मन को जीत नहीं पाएगा, সংসাৰে আমাৰ মনক জিকিব নোৱাৰিব, शैतान हमारे मन पे प्रभुत्व नहीं कर पाएगा। শয়তানে আমাৰ মনৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰিব নোৱাৰিব। आमीन। আমেন। ठीक है, आज इतना ही बोलूंगा, আজি ইমানে কম, प्रार्थना करते हैं। প্ৰাৰ্থনা কৰিম।
स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद। স্বৰ্গীয় পিতা আপোনাক ধন্যবাদ। सच में परमेश्वर, बहुत लंबा समय हम कलीसिया में आते हैं দীঘলীয়া সময় আমি গীৰ্জাত আহো और आपके वचन को सुनते हैं, আৰু আপোনাৰ বাক্য শুনো, लेकिन कई बार हम लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई क्या है, কিন্তু বহুতো বাৰ আপোনাৰ গাইডেন্স কি হয় আমি গম নাপাওঁ। क्योंकि शुरू से ही जो वचन के द्वारा मन की अगुवाई होनी है वो हुए बिना কাৰণ আৰম্ভণিৰ পৰাই যি মনৰ গাইডেন্স হ'ব লাগিছিল এইটো নোহোৱাকৈ हम लोग ने सिर्फ बच्चन से मन में अगुवाई पाए बिना सिर्फ हम बाहरी रूप से चर्च अटेंड किए আমি অকল বাহিৰা ৰূপেহে গীৰ্জাৰ এটেণ্ড কৰিলো। और हमने सिर्फ बाहरी कर्मों को देखा, আমি বাহিৰা কামটোহে চাইছো, मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ, মই সদস্য হয় নে নহয়, मेरा बपतिस्मा हुआ क्या नहीं, বাপ্তিস্ম হৈছে নে নাই, मेरा चर्च में नाम लिखा है क्या नहीं, মোৰ গীৰ্জাত নাম লিখা আছে নে मैं दान নাই, देता हूँ क्या नहीं, মই দান দিওঁ নে मैं নাই, दशांश देता हूँ क्या नहीं, সম্ভাগ দিওঁ নে নাই, मैं चर्च के कामों में सहभागी होता हूँ कि नहीं। গীৰ্জাৰ কামত সহভাগী হওঁ নে নাই, इन सब चीजों में ध्यान देने के कारण এই সকলো বস্তু ধ্যান দিয়াৰ কাৰণে हमने प्रभु के बलिदान को बहुत पीछे छोड़ दिया, আমি প্ৰভুৰ বলিদানক বহুত পাছফালে এৰি परमेश्वर के प्रेम को बहुत पीछे छोड़ दिया। ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক বহুত পাছফালে এৰিছো। इसलिए समय समय में हमारा मन हिलता है, সেইকাৰণে সময় সময় আমাৰ মনটো লৰে, विशेष करके जब हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, वो समय में हमारा मन हिलता है। বিশেষকৈ যেতিয়া আমি ভাল কাম কৰিব নোৱাৰো আমাৰ মনটো লৰে। लेकिन प्रभु, आप नहीं चाहते हो कि हमारा मन ऐसी चीजों में गिरे। প্ৰভু আপুনি নিবিচাৰে আমাৰ মনটো এনেকুৱা বস্তুত যে आप चाहते हैं कि हमारे मन में सच्चा विश्वास हो। আপুনি বিচাৰে যে আমাৰ মনত সত্য বিশ্বাস হওক। आपके बेटे ने हमारे जन्मदिन से मरने दिन तक का सारा पाप का जिम्मेदारी ले लिया है। আপোনাৰ পুত্ৰ আমাৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যু দিনলৈ গোটেই পাপৰ দায়িত্ব লৈছে। आपके बेटे यीशु क्रूस पर मर के हमारे पाप की सजा मौत को खत्म किया है আপোনাৰ পুত্ৰ যীশুৱে পাপৰ বেজ মৃত্যু খতম কৰিছে ক্ৰুচত, और अपने लहू से हमें धो के हमें शुद्ध और पवित्र किया है। আৰু তেওঁৰ তেজেৰে আমাক ধুই শুচি আৰু পবিত্ৰ কৰিছে। ये विश्वास हमें स्वर्ग लेके जाता है বিশ্বাসে আমাক স্বৰ্গত লৈ और যায়, आप हमारे पाप कभी भी याद नहीं करोगे। আৰু আপুনি আমাৰ পাপ কেতিয়াও মনত নকৰে। ये विश्वास हमें इस संसार में जीने की शक्ति देता है। এই বিশ্বাসে আমাক সংসাৰত জিকিবলৈ শক্তি দিয়ে। ये विश्वास हमें आपके सामने निडरता से आने का अनुग्रह देता है। সেই বিশ্বাসে আমাক নিৰ্ভয় হৈ আপোনাৰ আগত আহিবলৈ অনুগ্ৰহ দিয়ে। परमेश्वर, दया करो आप हमारे सारे भाई बहनों पर আমাৰ সকলো ভাই ভনীৰ ওপৰত দয়া কৰিব, जिनके मन में उद्धार का विश्वास अभी भी नहीं है। যাৰ মনত উদ্ধাৰৰ বিশ্বাস এতিয়াও নাই। दया करो उनके मन में वो लोग उस विश्वास को प्राप्त कर सकें, দয়া কৰক যে তেওঁলোকে সেই মনত বিশ্বাসটো পাব পাৰে। और जो लोग विश्वास पाए हुए हैं যিসকলে বিশ্বাস পাইছে उनके विश्वास की सुरक्षा करो তেওঁলোকৰ বিশ্বাস সুৰক্ষা কৰক, और ये विश्वास का प्रचार उन्हें करने दो। আৰু বিশ্বাসৰ प्रचार কৰিব দিয়ক। कलीसिया के साथ एक मन होकर जीने दो। গীৰ্জাৰ লগত একমন হৈ জীয়াব দিয়ক। शरीर और संसार में वो लोग खुशी ढूंढने ना जाएं। শৰীৰৰ সংসাৰত যাতে সুখ বিচাৰি নাযায়, सुसमाचार के अंदर जो खुशी है वो उन्हें पाने दो। শুভবাৰ্তাৰ ভিতৰত যি সুখ আছে সেইটো পাব দিয়ক। सुसमाचार के लिए दुख उठाने का भी मन उन्हें दो। শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে দুখ উঠোৱাৰ মন দিয়ক। सुसमाचार के लिए वो लोग अपमानित भी हों ऐसा मन भी दो, শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে অপমানিত হোৱা মনো দিয়ক। और पूरी कलीसिया मिलके प्रभु की सेवा कर सके ऐसा अनुग्रह আৰু दो। গোটেই গীৰ্জাই মিলি প্ৰভুৰ সেৱা কৰিব যাতে পাৰে এনেকুৱা মন कलीसिया দিয়ক। मिलके ये सुसमाचार को शक्तिशाली रूप से प्रचार करे ऐसा अनुग्रह दो। আৰু গীৰ্জাই যাতে মিলি শক্তিশালী ৰূপে শুভবাৰ্তা प्रचार কৰে এনেকুৱা মন দিয়ক। जहाँ कहीं हम जाएं हमारे उद्धार की हम गवाही दे सकें ऐसा अनुग्रह दो। আৰু য'তে আমি যাওঁ আমি উদ্ধাৰ যাতে সাক্ষ্য দিব পাৰো এনেকুৱা মন দিয়ক। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ধন্যবাদ দিছো আপোনাক। यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना যীশু किया। খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলো। आमीन। আমেন। सबको धन्यवाद। সকলোকে ধন্যবাদ। सो